Sir, I've been sitting for 5+ hours making revision sheets for organic chemistry. बेटा 5 hours में तो पूरी organic chemistry हो जाती है। रिविजन शीट किस चीज़ के बना रहे हो? हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। डू यू गाइस वांट मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 घंटे का पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें मैं पूरा कवर किया, वो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, अगर आप लोग कहते हैं। अपलोड कर दूंगा यार, अब तो टाइम कम ही रह गया, अब क्या ही करने हैं छुपा छुपा के रख के। शेयर करो भाई, बच्चों के साथ शेयर करो, उनका ग्रेड आ जाए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट Sir Suleiman against all the teachers. I'm joking. I do admire teachers who are doing a good job with students. Zymatics हो गया, Math Elite by Saad हो गया, Sir Abbas हो गए, Physics by Talha, Sir Basit हो गए, सारे they're doing good job, right? And the reason why I'm saying that they're doing a good job is because they're helping out students, right? तो अच्छा है, ठीक है सर, at the end सारा credit आप ले जाएंगे। Yes, yes। मैं केडी क्रेडिट लेके जाऊंगा यार, आपके अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत कर लो, ग्रेड ले आओ, बस सही है। सर आपके पास पेपर्स, ये आपके पेपर्स हैं बेटा, बहुत जल्दी आप जाके आओ, आपने तो मेरा सेशन भी दिया है, ये टॉपिकल बुकलेट है हमारी। किस पेज पे है टॉपिकल बुकलेट में? चैप्टर 15 मिसलिनियस क्वेश्चंस, ये चैप्टर 15 है। तो ये करते हैं, और अगर आपके पास नहीं है 2023 का कोई ईयरली पेपर्स भी हो तो 2023 नवंबर 4 1 क्वेश्चन 1 है। सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगा होपफुली। सर इसका पीडीएफ मिल सकता है बेटा, बहुत जल्दी जाके हो। अगेन गुड मॉर्निंग जुलेखा मर्ती की औरत, इट्स प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप। सर अभी स्टार्ट कर दें तो हो जाएगा। चलो शुरू करें जी। Let's start. Bismillah Rahman Rahim. I didn't know that this topic existed. No, my topical booklet is very nice. I've spent almost 1.5 lakh rupees on it to compile it with students, right? मैंने हर एक सवाल अपने हाथ से उठा के डाला हुआ है, तो it's good, it's good. Chillings होंगी हैं। चलिए जी, miscellaneous question. Question number 1 says, a list of gases is shown. Disclaimer, guys. I'm not just going to solve these questions for you. I will revise almost 30 to 35% of your syllabus through these questions. So if you guys get bored with me explaining each and every, word that's written, you have to bear with me, right? In order to revise your syllabus, you have to bear with me when I explain each and every gas and all its properties and whatnot. ठीक है, तो अब आप देखेंगे, you'll see the magic of these beautiful questions. These questions will help you revise almost 25 to 30% of your syllabus. ठीक है जी, let's start. So a list of gases is shown. Now, before I look at the questions, what I'm going to do is, you guys can look at the questions when you're actually solving, this past paper. But what I'm going to do is, I'm just going to look at every single gas that's written, and I will tell you about that gas. I'll tell you whatever comes to my mind with regard to that gas. Chalo. So we have the first gas as ammonia. What do we know about ammonia, everybody? What do we know about ammonia? We know that ammonia is a simple covalent molecule. Why is it a simple covalent molecule? Because we know that nitrogen is a non-metal, hydrogen is a non-metal. So there's a covalent bonding between nitrogen and hydrogen, right? It looks something like this. Nitrogen bonded to 3 hydrogens right here. Nitrogen bonded to 3 hydrogens. Done, sir. So that's how ammonia looks, right? And if you talk about ammonia in general, ammonia is a weak base. Why is it a weak base? Because it partially dissociates when you add it to an aqueous solution. So when you add it to water, it partially dissociates. That's why I'm going to represent it with a reversible arrow. And because it's a weak base, bases accept proton, right? So it's a proton acceptor, therefore it'll accept the proton and become ammonium hydroxide. And this ammonium hydroxide is in fact an alkaline solution. Huh? How did you know that ammonium hydroxide has this formula? Well, when H2O donates a proton and NH3 accepts a proton, you just add it, right? NH3, and you add one hydrogen and add the positive sign. So what do you get? You get NH4 1 plus. And in the H2O, because the H plus has left the H2O, what's left behind? You have the hydroxide left behind. So if you check it out, the formula becomes ammonium hydroxide. Done, sir. Then you know that ammonia, because it's a weak base, it's gonna turn damp red litmus. It'll turn damp red litmus blue. Yeah? It'll turn damp red litmus blue. What will ammonia's effect be on damp blue litmus paper? Anybody? It's a pungent smelling gas. Absolutely. It's a pungent. What do we mean by pungent smelling? Pungent smelling means it's a strong smelling gas. If it's a damp blue litmus paper, then ammonia will have no effect on it, right? There'll be no change. Absolutely, right? So this is what comes to mind when I talk about ammonia, right? Now let's talk about carbon dioxide. First of all, how is carbon dioxide formed? Yes, it's like fart smelling. Yes. Pungent smelling is mostly a strong smelling gas. Ammonia smells like piss.
गंद नहीं होता, अभी नाली के इर्द गिर्द घूमे तो आप अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुन लेते। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, अगेन इट्स अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, सो CO2 is therefore a simple covalent molecule. And if I check it out, can you guys tell me, is it an acidic oxide or is it a basic oxide? First of all, is it an acidic oxide or a basic oxide? Obviously it's an acidic oxide. Done, sir. And then if I ask you, what will an acidic oxides, what will the effect of an acidic oxide be on a litmus paper? What will the effect of an acidic oxide be on a damn blue litmus paper? Obviously, it will turn the damn blue litmus paper red, right? Because it's acidic in nature. Done, sir. And then if I ask you, how is carbon dioxide formed though? How is carbon dioxide formed? How is it formed? How is this beauty formed? This beauty is formed through. Normally, we find it in air, obviously, because 1% of your air contains carbon dioxide and noble gases like argon. But you realize that it's formed through respiration as well. And more than respiration, it's formed by the complete combustion of, not just complete combustion of what? Complete combustion of carbon containing fuels. कार्बन कंटेनिंग जो फ्यूल्स होते हैं, तो उनकी कंप्लीट कंबशन से you have your beautiful carbon dioxide formed. And what is something bad about carbon dioxide? What is something bad about carbon dioxide? कि यार carbon dioxide नहीं यार, it's not a good thing. It's a greenhouse gas, absolutely. And what do greenhouse gases do? Greenhouse gases result in global warming. अच्छा, what does global warming do? What does global warming do? Global warming results in climate change, yes, the rise in sea levels, desertification, melting of ice caps and glaciers, and floods and whatnot. So you know all that blah 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 stuff from your geography. ठीक है जी? अच्छा, what would be the solution for carbon dioxide? What can I do? It's a summer killer. Yes. What can I do to try to get rid of the excess carbon dioxide? No, 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 Abhiha, no, no, not a catalytic converter. A catalytic converter takes carbon monoxide and it takes oxides of nitrogen, NOx जिसको हम कहते हैं, and converts it into nitrogen and carbon dioxide. Catalytic converter तो बनाता carbon dioxide है, वो तो carbon dioxide का हल नहीं है. Carbon dioxide का हल है, yes, afforestation. You guys are right. Plant more trees is one way. And then you realize that if you were to reduce carbon dioxide in the atmosphere, go for the root cause. What is the root cause of carbon dioxide? एक तो respiration है, वो तो normal है, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना. All living things are gonna respire. But you know that carbon dioxide is formed in the combustion engines. So if you have complete combustion of the carbon containing fuels, carbon dioxide is going to form. So what can I do? What else can I do? I can plant more trees, but more than that, I can nip the evil in the bud, and I could use less fossil fuels. Less fossil fuels, use of less fossil fuel, less use of fossil fuels है. ये मैं आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रिवाइज करा रहा हूँ. तो सारे बोंगे बोंगे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं. फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करें, बिल्कुल. यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट एन एसिडिक ऑक्साइड और इज इट ए बेसिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड? It's neither. Thank you very much. It's a neutral oxide. It's not neither an acidic oxide nor a basic oxide. It does not show properties of an acidic oxide or a basic oxide. Sir, आपकी writing. Sorry यार, मैं बोल तो रहा हूँ साथ साथ. Writing. अच्छा, one of my friends, his name is Mohsin. I told him this today. I was like, Mohsin यार, बच्चों का मेरे writing से थोड़ा बहुत इतराज. उन्होंने कहा था कि यार calligraphy की क्लास थोड़ी ना है, chemistry की क्लास है. Sorry guys. So it's a neutral oxide. You need to know this. Carbon monoxide is a neutral oxide. H2O is a neutral oxide. I'll tell you, H2O, carbon monoxide, and nitrous oxide, N2O. Nitrous oxide is laughing gas, So these three are the three neutral oxides that are a part of your course. So it's a neutral oxide, although it's a neutral oxide, but you realize that carbon monoxide is toxic. It's a toxic gas. It's a poisonous gas, right? It's toxic gas. It's a poisonous gas. Acha, what effect would carbon monoxide have on the litmus paper? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लीज इलेक्ट्रोलिसिस की वीडियो अपलोड कर दे. चिल करो पहले. What effect would it have? It will have no effect. Please, this is the biggest misconceptions that students have. Students think that carbon monoxide will also have an effect on the litmus paper. No, it's neutral. It will have no effect for your course. ठीक है जी? How is carbon monoxide formed though? How is carbon monoxide formed? ये बनता कैसे है? How is carbon monoxide formed? It's formed through the incomplete combustion of carbon containing fuels. बिल्कुल incomplete combustion, लेकिन किस चीज की incomplete combustion? You have to tell the examiner incomplete combustion of carbon containing fuel. Then what can be the solution for it?
what can be the solution for what can be the solution for carbon monoxide? हाँ जी. Same as CO2? No, no, not same as CO2. There's a difference. You said that right here. Look at this. Look at this beauty. Catalytic converter is one of the biggest solution for carbon monoxide, right? So what you need to do is, हाँ, lean burn engines इस्तेमाल कर सकते हैं. There are two solutions for it. First of all, use a catalytic converter. जो ये Audis वगैरह होते हैं ना, Audi, Mercedes वगैरह, ये महंगे इसलिए होते हैं because their catalytic converters are worth almost 30 lakh, 20 lakh, 25 lakh. इनके एक catalytic converter 15 20 लाख रुपए का होता है. पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, right? और वो इसलिए होते हैं because catalytic converter has a catalyst known as platinum or rhodium, which are very expensive, right? तो catalytic converter what it does is it converts the carbon monoxide and NOx, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड हो सकते हैं, into nitrogen and carbon dioxide. And what else does a catalytic converter do? It also takes the unburnt hydrocarbons and completely combusts it. So it gives you carbon dioxide and H2O. So there are effectively three products of catalytic converter. There are three products of catalytic converter. It's nitrogen, carbon dioxide and H2O से. ठीक है, तो कैटेलिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करें. और दूसरी चीज, यूज लीन बर्न इंजन्स. ये सारा आपके कोर्स का हिस्सा है. अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता. हाँ, बच्चे ने लिखा, सर इज दिस अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स? यस, योर टीचर्स शुड हैव टॉट यू दिस इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. लीन बर्न इंजन्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ताकि इनकम्प्लीट कंबशन ना हो. ठीक है, तो लीन बर्न इंजन्स इस्तेमाल करें. अच्छा, इथीन क्या भला है? ये सारे मेरे जहन में आने चाहिए, ये आपके जहन में भी ऐसी ऐसी बातें आनी चाहिए. ठीक है जी. ये क्या लिखा है? लीन बर्न इंजन लिखा हुआ है, लीन बर्न इंजन. अच्छा, इथीन क्या? इट्स एन एल्कीन, इट्स एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इट फॉर्म्स पॉलीमर्स, जैसे आपके पास एडिशन पॉलीमर्स, इट विल फॉर्म एन एडिशन पॉलीमर्स. इथीन से कौन सा पॉलीमर बनेगा? पॉलीइथीन ऑब्वियसली. एंड इथीन ऑल्सो फॉर्म्स टू मोर थिंग्स इन योर कोर्स. वेल, इट फॉर्म्स थ्री थिंग्स, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर इथीन से हम शराब भी बना सकते हैं. हाउ डू यू मेक अल्कोहल आउट ऑफ इथीन? You literally take ethene and you perform the addition reaction called as hydration. तो आप इसमें steam डालते हैं, H2O gas, not H2O liquid, but you add H2O gas to it, and what's going to happen is you're going to get what? You're going to get ethanol. You're going to get ethanol, but you need certain conditions. What conditions do you need? You need 300 degrees Celsius as your temperature, you need 60 atmospheres as your pressure, and you need a catalyst which is phosphoric acid, acidified aqueous phosphoric acid. वैसे तो आप अपने 2023 onwards you could use any catalyst, but which is an acid, but हम 2023 और उससे पहले जो है हम फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल करते थे, एसिडिफाइड एक्वस फॉस्फोरिक एसिड. इन योर कोर्स यू कुड जस्ट राइट एन एसिड. ठीक है, लेकिन बेहतर है आप, सर आपकी 30 तो स्पीड थोड़ी सी तेज है, थोड़ा स्लो कर लें. बेटा खत्म भी करना है ना, 12 बजे तक टाइम है. सर ये आईजीसीएसई को क्वेश्चन है? नहीं, ओ लेवल्स का भी. फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज से एथेनॉल बनेगा, लेकिन हम इधर ईथीन की बात करें कि ईथीन से क्या क्या चीजें बनेंगी हैं. तो वे लुकिंग इनटू इथीन. अच्छा, इथीन से एक और चीज भी बन सकती है. इट कैन फॉर्म एथेनॉल एंड इट कैन आल्सो फॉर्म ईथेन. हाउ विल इट फॉर्म ईथेन? ईथीन से ईथेन कैसे बनेगा? ethene से ethane कैसे बनेगा? Obviously there's a difference of hydrogen, right? So you literally just add hydrogen to it and you provide it with nickel solid as the catalyst, and you need to provide it with a temperature of 200 degrees Celsius, heat till 200 degrees Celsius. Yes जी, बिल्कुल सही है. Hydrogenation मैंने आपको सिखाया था. You could also call it addition reaction, right? तो what's gonna form? You're gonna get ethane, right? तो ethene की ये कहानी. फ्लोरीन को देख ले. फ्लोरीन is a diatomic molecule. It's a simple covalent molecule. It's a diatomic molecule. What do we mean by a diatomic molecule? सर 12 बजे तक एक सवाल हो रहा है? नहीं 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 नहीं, देखें, आई सेड दिस एट द बिगिनिंग. This one question or two, three questions that I'm going to do, they're going to revise almost 25-30% of your course. तो ये चीजें भूल जाएं कि आप सवाल ज्यादा करने आए. ये याद रखें कि आप केमिस्ट्री रिवाइज करने आए इधर हैं. तो फ्लोरीन is a diatomic molecule. What do we mean by diatomic? Sir, diatomic literally means made up of two atoms covalently bonded. हैं, made up of two atoms कोविलेंटली बॉन्ड. मैं आपकी थ्योरी भी रिवाइज करा रहा हूं ना. आई खुदाया पाका ना शुक्रे. सवाल सवाल करने को तो 2 मिनट भी नहीं लगते. हाँ जी. और ऑक्सीजन की बात थोड़ी सी कर लें तो ऑक्सीजन
पढ़ के क्या आता है जहन में, ऑक्सीजन सुन के क्या आता है, इट्स मेड अप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतना ही आता है, कंबशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। सर फ्री है ना, समझा करें, चलो इसको पेड करते करें, मजाक करूँ, नहीं फ्री रहेगा। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट्स यूज्ड as a result of respiration and whatnot. And if you talk about sulfur dioxide, अब this is a very crucial point. सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत सारी बातें आपको आनी चाहिए। सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड मैं किधर लिख लूँ यार, इधर लिख लेता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड की बात लिख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, राइट? सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, एंड you know that sulfur dioxide will result in something known as acid rain. Sulfur dioxide results in acid rain है। कैसे एसिड रेन करता है? यू रियलाइज दैट सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर इन द एयर, एंड व्हाट हैपेंस इज it forms H2SO3, which is sulfurous acid. Or sulfur dioxide can also react with oxygen to give you sulfur trioxide, which will react with water vapor in the air, and it would provide you with sulfuric acid. So remember, SO2 is an acidic oxide and it's gonna cause acid. इसको acidic oxides क्यों कहते हैं? Because when they dissolve in water, they result in an acid formation, right? और sulfur dioxide जो है, it also reacts with oxygen to give you sulfur trioxide. और ये किधर का पार्ट था? You learned this in contact process. And what are the conditions for it? So the conditions are a temperature of 450 degrees Celsius, 2 atmospheres as the pressure, and the catalyst is vanadium pentoxide. Huh? अच्छा, so if sulfur dioxide is causing acid rain, हम क्या करें सर? मैंने, अब वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने क्लास सेशन लेना है, उनको कौन मिस नूर से पोर्टल ले ले। अच्छा, so if you look at sulfur dioxide, it's a problem, right? It's a problem because it's causing acid rain. What can be the solutions for sulfur dioxide? दो solutions है आपके कोर्स में, क्या है सर? फ्लू गैस desulfurization, obviously. What is flue gas desulfurization? सल्फर डाइऑक्साइड को ना फ्लू गैस भी कह देते हैं, just for your course, हाँ। तो इसको फ्लू गैस is actually sulfur dioxide। हम इसको क्या करते हैं? We react it with a basic oxide, which is calcium oxide. So you know acidic oxide and basic oxide are gonna react, and just add all of these elements, right? So what's gonna form is you're gonna end up with calcium sulfite। और ये कैल्शियम सल्फाइड किधर इस्तेमाल होता है? प्लास्टर बोर्ड्स में इस्तेमाल होता है। सो द फर्स्ट सोल्यूशन फॉर सल्फर डाइऑक्साइड इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, एंड एब्सोल्युटली व्लॉग वर्स इज राइट। द सेकंड सोल्यूशन फॉर इट इज यूज लो सल्फर फ्यूल्स, राइट? तो लो सल्फर फ्यूल्स जो है वो इस्तेमाल करें। ये आपकी तकरीबन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिवाइज हो रही है। सल्फर, अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू गाइस, सर कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड, हाँ? Carbon dioxide is also an acidic oxide, and sulfur dioxide is also an acidic oxide. And we said that acidic oxides are known as acidic oxides because when they react with water, they're effectively going to give you acid rain, right? My question to you guys is, does carbon dioxide cause acid rain? Obviously, carbon dioxide is an acidic oxide. If I write the reaction for carbon dioxide, it's be carbon dioxide reacting with H2O. Obviously, it's going to give you a weak acid. Carbon dioxide gives you the negative ion of carbonate ion, and you're going to get H2CO3, right? But this is also an acid, right? So, can we not say that carbon dioxide also results in acid rain? Can we not say that carbon dioxide also results in acid rain? सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। देखिए, योर एयर ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट हैज 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी। 1% में थोड़ा सा परसेंटेज होता है, बट अराउंड 0.1% जो भी है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल रेन इन इटसेल्फ इज स्लाइटली एसिडिक, सो यू रियलाइज। और ये वैसे भी इट्स अ वीक एसिड, बट नेचुरल रेन जो हम सिंपल रेन की बात करते हैं, इट्स स्लाइटली एसिडिक इन इटसेल्फ। तो जब आप कहते हैं ओ माय गॉड इट्स रेनिंग, पानी पी लें, इट्स ऑलरेडी स्लाइटली एसिडिक। So you don't say that carbon dioxide results in acid, but sulfur dioxide is a pollutant. You as humans are, emitting sulfur dioxide. You're using, fuels which have sulfur content, and all of these reasons. You are roasting zinc blend with the oxygen to give you sulfur dioxide. तो ये तो sulfur आप खुद बना रहे हैं, and it gives you a proper acid which is sulfuric acid, or you could say sulfurous acid H2SO3. तो एक ही बात याद रखें, no, both will not cause acid rain. कार्बन डाइऑक्साइड इन इटसेल्फ, जब आपका नॉर्मल रेन होता है, हम उसको वैसे कहते हैं स्लाइटली एसिडिक। नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक, सो यू आर नॉट गोना से दैट कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो सॉक्स एंड नॉक्स रिजल्ट इन एसिड रेन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है जी। Xenon क्या है? It's a noble gas, it's inert. Why is xenon inert? Because it has a stable electronic configuration. And it's a monoatomic gas, right? Why is it called monoatomic? Because it's made up of
single atoms not chemically bonded. Monatomic का मतलब क्या है? Mono means single, right? Single atoms not chemically bonded is called monatomic. Diatomic, two atoms chemically bonded, covalently bonded. अब आ जाते हैं सवाल पे, which of these causes acid rain? हाँ जी बताएं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? Obviously it's sulfur dioxide. खत्म जी. Which of these forms an alkaline solution when dissolved in water? Look at this, ammonia. When you took ammonia and you dissolve it in water, it was a weak base and it resulted in ammonium hydroxide, which is an aqueous solution and it's an alkaline solution. Yes, sir. So that's ammonia. Which of these is inert? Xenon. Which of these is a product of photosynthesis? Oxygen. हाँ जी, हलवा लग रहा है कि नहीं? Which of these can form a polymer? Ethene. अब तो सिर्फ प्लग इन कर रहा हूं मैं, और तो कुछ नहीं कर रहा. विच ऑफ दीज इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आइंस? अच्छा, अब ये चीज हमने नहीं डिस्कस की. नाइट्रेट आइंस का टेस्ट क्या है? Now, what is the test for nitrate ions? You literally take aluminum foil, you add sodium hydroxide to it, and you literally warm it. And what is the result? If the result is your ammonia gas, then we are going to say that nitrate ions are present. So which of these ions results in which of these is produced as a result of nitrate ions test? Obviously that's ammonia, so I'm going to write ammonia again. Oh sir, but you've written ammonia above too, you're writing it again. Oh you dumbos, the examiner is saying answer the following questions using only the gasifier. Each gas may be used once, more than once, or not at all. Sir, test for ions is not in theory. No, 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 no. This is the biggest misconceptions that teachers are falling a prey to. All these tests for gases, ions, although they will be given to you in the ATP paper, but they will never be given to you in the theory paper and the MCQ paper, and it will be tested. This is a theory paper and it has been tested in 2023. ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ, you need to know your tests. And I've made it very easy for you to remember your tests. वो आप recordings देख लें तो आपको मिस नूर से contact करें, आ जाएगा. अच्छा, एक और भी आयन है which results in ammonia being formed. No, not all metal oxides are basic oxides. Aluminum oxide, zinc oxide, lead oxide are amphoteric. आपके कोर्स में अब lead नहीं है, lead oxide नहीं है. So these two are amphoteric. अच्छा, एक और ion भी which is also resulting in ammonia. Thank you very much, Abiha. That's ammonium ion. So ammonium ion also results in the formation of ammonia. But what's the difference between the test for ammonium ion and the test for nitrate ion? Ammonium ion में you add sodium hydroxide and you just warm it. You don't add aluminum foil to it. ठीक है जी? Know your tests mean that should know the test for negative ions, positive ions, gases. जो iron 2 plus ion है, iron 3 plus ions, all of this. Haram, you can get the recordings by contacting Miss Noor. उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी. एंड दिस विल आल्सो रिजल्ट इन अमोनिया फॉर्मेशन. खत्म. ये पहला सवाल था, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, आपस की बात है. लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. अब ये तो बड़ा सिंपल है. इसमें एक बात बहुत जरूरी है, इसमें एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो बस नहीं करनी, बाकी तो ये बड़ा आसान. इसके बाद जो सवाल मैं करूंगा होपफुली वो ये है. हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इस सवाल से मैं बहुत सी चीजें आपकी रिवाइज कराऊंगा. अच्छा, इस सवाल को देखें. 2023 table 1.1 gives the electronic configuration of some atoms and some ions. This is very important here. क्यों? इसमें तो शायद वो ना टेस्ट करे, लेकिन कभी ना कभी वो टेस्ट करेगा इस चीज को. क्यों? क्या चीज मैं कह रहा हूं? देखें, the outermost electrons and the number of shells will tell you the group number and the period number for atoms. It will never tell you the group number and period number for ions. I'll tell you what I mean by this. देखें, the number of shells and the group number, जो outermost electron से पता लगता है, outermost electron से पता लगता है, this is only applicable for atoms, not applicable for ions. What I mean by this is, if you look at sodium, sodium is 1123, and if you write the electronic configuration of sodium, that's going to be what? पहले shell में दो. Electronic configuration means what? Electronic configuration literally refers to the distribution of electrons in shells. तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो शेल्स में होती है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8, दिस इज 10, दूसरे में 8, दिस गिव्स यू 10, एंड द लास्ट वन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन नीड्स अकोमोडेशन, तो ये तीसरे में आ जाता है. अब इस चीज को गौर से देखिएगा.
The first shell has 2, the second has 8, and the last has 1. Now, the last electron, the valence electron, will tell you the group number for this atom. So, ये group 1 में. And the number of shells will tell you the period number. So, this is period 1, period 2, period 3. So, sodium will be in group 1, period 3, right? So, if you go onto your periodic table and you check sodium out, look at this beauty. It's in group 1 right here, and it's in period 3. This is period 1 right here, that's period 2, and that's period 3. So group 1 and period 3 they coincide right here. अब इसको एक और तरीके से देखें. If I say you have sodium ion, if I say you have sodium ion, right? Sodium ion is also 1123, but if now I write the electronic configuration for sodium ion, that's 2 8, right? Because now it has lost the electron. Now can you guys look at the electronic configuration and trace back to sodium? Can you guys look at the electronic configuration and let's suppose you did not know that you had this sodium, the ion was sodium. लेकिन 2 8 से क्या मैं ये deduce कर सकता हूँ कि ये sodium element मौजूद था मेरे पास? No. So remember, from the electronic configuration you could only trace back into the elements if they are in the form of their atoms, right? लेकिन जब ions बन जाते then you can't trace back until and unless you either know the proton number or you know some other detail about this कि यार charge इसके ऊपर ये है, so you do reverse working. तो अदर देन दैट अगर सिर्फ 2 8 लिखा और मुझे कहा ये एक आयन है, आई कैन नॉट टेल कि किस एलिमेंट से ये आयन बना था, किस एटम से ये आयन बना था, राइट? तो ये बहुत जरूरी, शायद इस सवाल में ये टेस्ट ना हो, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है? अच्छा जी, तो ये एटम्स भी हैं, आयंस भी हैं. सर हाउ डिड यू नो इट वाज सोडियम? आई कैंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर मैं इसके 1+ डालूं और 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और लेट्स सपोज यू डिड नॉट नो कि यार ये क्या चीज़ है, यू डिड नॉट नो ये क्या बना है, तो 2 8 से आप डिड्यूस कर सकते थे कि ये सोडियम है? नहीं ना. तो यही मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू हैव एन आयन, व्हेन यू हैव एन एटम, यू कैन लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड डिड्यूस व्हिच एलिमेंट इट इज, राइट? बट इफ यू हैव एन आयन, यू कैन डिड्यूस कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है, राइट? अनलेस एंड अनटिल you have further information. Acha ji, now let's look at the questions. It says answer each of the following questions about A to G, each letter. Now it's very important to write the letter. See, he's given you A, B, C, D, E, F, G. So he's given you letters. You are going to use letters, right? So it says state which of the atoms or ions A to G could be a noble gas atom. You know that noble gas atoms, they have a complete electronic or complete outermost shell, right? Or you could say a stable electronic configuration. So which of these would have a complete outermost shell? It means if it just has one shell, अगर सिर्फ मैं कहूं कि electronic configuration is 2, is this the complete outermost electron shell? If I just say that the electronic configuration is 2, absolutely it is. Helium has the electronic configuration of 2 and it has a complete duplet, right? तो you know कि आपका जो noble gases हैं, अगर सिर्फ एक shell है और उसमें 2 electrons है और एक atom है, you know it's helium, right? So helium has a complete outermost shell because it only has one shell and the first shell can accommodate only 2 electrons. So complete outermost shell देखिए, अब इसमें सिर्फ 2 तो है नहीं, तो अब आपने देखना है 8. So if you check this out, it's B right here. So B has 8. And is there anybody else which has 8 electrons in its outermost shell? No, it doesn't. So I'll say hey, B. An atom of an element with group 6. Group 6 means that it must have 6 electrons in its outermost shell. So 6 electrons होने चाहिए outermost shell में. Check कर लें which of these has 6 electrons in its outermost shell. This is 6 right here. और कोई 6 है? No. So that's F. है कितना आसान है यार. इसके बाद वाला सवाल बड़े मजे का है. An atom with the atomic number of 14. What is meant by the atomic number? Atomic number literally means the proton number, the number of protons in the nucleus of an atom. Again, miscellaneous question से सिलेबस रिवाइज कर रहा हूँ. बच्चे कहते हैं ना सवाल मैक्सिमम हो जाए, सिलेबस जाए मान में. अच्छा, sir, I love you for teaching like this. Thank you, man. Acha, an atom with the atomic number of 14. So 14 atom. Acha, if it's an atom, now look at this. You're given electronic configuration and you're asked about the number of protons, but he's saying it's an atom. Remember, for atoms, proton numbers are equal to electrons. Why? Why are protons and electrons equal for an atom? Because there's no charge, right? The number of protons, atom के ऊपर कोई charge नहीं होता, which means what? That the protons and electrons must be equal. Both protons and electrons have they are opposite in charge and they have the same magnitude. एक +1 है, एक -1 है. So they cancel each other out, right? So protons and electrons must be. So now you have to look
look at the electronic configuration which effectively gives you 14, जो कि क्या है, पहले में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8 10 हो गए, और तीसरे में 4 होने चाहिए. So that's 14 with you. अब चेक करें किस में 14 है. So that's D right here. 2 8 4 10 4 14, right? It's an atom. वो कह रहा है atom है. और 14 क्यों लिख रहा हूँ? एटॉमिक नंबर डी लिखना चाहिए, 14 नहीं, डी है. अच्छा, atoms which are in the same group, they must have the same number of valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए. विच ऑफ दीज हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? चेक करें सर. सर ये ए में 5 है और ई में भी 5 है. सो ए एंड ई हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सर ये जी क्या है? जी क्या मतलब, जी क्या है? जी क्या, अच्छा बताता हूँ जी क्या है. एटम्स फ्रॉम द सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप क्या है, ए और ई है. दैट्स व्हाट वी विल राइट हियर, ए एंड ई. अब कह रहा है कि किसी ने सवाल पूछा कि सर ये जी क्या है. सर क्लास कब तक खत्म होगी? 12 बजे ऑफ, खत्म. मुझे भी नींद आई है. अच्छा, किसने पूछा सर ये जी क्या है? देखिए, द एग्जामिनर हैज जस्ट डन दिस टू कंफ्यूज यू गाइस. आपके कोर्स में ये जानना जरूरी नहीं है कि 2 8 18 और 7 होता है. आपने क्या करना है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर 8 8 8 8 8 8 ये आने चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स वुड बी टेस्टेड, जिसमें ये मसला नहीं होता. लेकिन ये 18 को गोली मारे आपने, 18 के साथ क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सी कि ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है. द पीरियड, द नंबर ऑफ शेल्स विल टेल यू द पीरियड विच इज पीरियड 4, एंड द फोर्थ, द लास्ट शेल विल टेल यू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो के साथ है. सर हमें भी आंसर करने दें तो करें ना. तो आप बताएं जी, हेलोजन एटम कौन सा है इसमें? वो आपका जी बनता है. वाई? बिकॉज हेलोजन आर ग्रुप 7s. अच्छा, ग्रुप 7 को हेलोजन क्यों कहते हैं? हेलोजन क्यों कहते हैं इनको, हैं? हेलो लिटरली मीन्स सॉल्ट. Gen means former. They are salt formers. They react with group 1 or group 2 to make salts. हैं? Sodium के साथ chlorine react करेगा to give you NaCl, which is a salt. So they are called halogens because they are salt formers. अच्छा, ग्रीक वर्ड है बिल्कुल. An atom of an element which is a good conductor of electricity. Now you know what are good conductors for electricity. What are good conductors for electricity? They must be metals, अच्छे metals. और metals कौन से ग्रुप में होते हैं? ग्रुप 1 में होते हैं, ग्रुप 2 में होते हैं मोस्टली. तो आप चेक करें ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कौन सी बला पड़ी. कोई ग्रुप 2 का है? हाँ हाँ बिल्कुल. यू हैव सी राइट हियर. C is present with you. C has an electronic configuration of 2A2, which means the last two are indicating the valence electrons. And valence electrons tells you about the group number. तो ग्रुप 2 में हो गई, और ग्रुप 2 में मेटल्स होते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर. अच्छा, व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. और नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, नॉट डीलोकलाइज्ड आयंस. आयंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स में होता है, वो नहीं. सो दे हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं. अच्छा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज, फ्री मूविंग बेहतर है कि आप फ्री मूविंग आयंस के लिए इस्तेमाल करें, जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए डीलोकलाइज या मोबाइल का लफ्ज इस्तेमाल. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. आई हैव अ क्वेश्चन. डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? रट्टा मारो है मार्किंग स्कीम तो. डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पियर्सन एट एक्सेल, आई लाइक इट बिकॉज ऑफ दिस. वो 2 मार्क का ये सवाल पूछता है. ओ लेवल्स 1 मार्क का पूछा है, बच्चा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन देखता है, बच्चा ओ लेवल टिक मार देता है. लेकिन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में क्या कहते हैं? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कैन कैरी द चार्ज ना, एंड यू नो फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी. सो यस, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है? दे कैरी चार्ज. तो ये फिजिक्स टीचर का काम है, पता नहीं किससे फिजिक्स पढ़ना. अच्छा, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सो ये ग्रुप 2 है, और ग्रुप 2 आपके पास यू आइडेंटिफाइड दैट सी. सर a stable ion of group 5 element. Now is saying sir stable ion है. स्टेबल आयन का मतलब क्या है? ग्रुप 5 एलिमेंट है. इफ इट वर टू मेक एन आयन, वो आप कह रहे हैं कि इसने आयन बनाया हुआ है, ग्रुप 5 का एलिमेंट है और उसने आयन बनाया. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ ग्रुप 5 एटम नीड टू मेक एन आयन? You know that group 5 lacks 3 electrons to become stable. Everything in this universe wants to become stable, and stability for an atom means that they should have a complete electronic configuration, aka a complete outermost electron shell. तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप 5 में, उसको और कितने चाहिए टू बी कंप्लीट? इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बी कंप्लीट. तो 3 और इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए. सो व्हाट यू रियलाइज इज that it needs 3 more electrons to be complete, and it would have a stable electronic configuration. अब आप देखिए इनमें से stable electronic configuration किसका है? Stable electronic configuration किस चीज का है? Stable electronic configuration means that it must have complete outermost shell. देख लेते हैं stable electronic configuration. That's B right here. B only has a stable electronic configuration out of all of them, right? It's 2 8. 8 is the complete outermost shell. So B is the correct option. अब देखिए वो दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है. An atom that forms an ion of 2 minus. ये नहीं कहा कि वो आयन क्या है
जिसने 2 - का चार्ज बनाया, नहीं नहीं नहीं, फिर तो स्टेबल होगा ना, फिर वो भी बी होगा। बट इट्स सेइंग वो एटम क्या है जो 2 - का चार्ज बनाए। सो यू नो विच एटम फॉर्म्स अ 2 - आयन? ऑब्वियसली ग्रुप 6, बिकॉज ग्रुप 6 needs how many electrons to become stable? It needs 2 electrons to become stable. So group 6 is going to form a 2 - ion, right? And which of these is group 6? Obviously, it must have 6 electrons in its outermost shell. If I look at the last shell, it's F. बस जी, इधर आपकी लर्निंग सही होनी है इस वाले सवाल में। ये बाकी तो हलवा था, ये भी हलवा है वैसे, आपस की बात है। सर, हैव यू एवर थॉट ऑफ जॉइनिंग अ कार्टेल? क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा, मजा आ रहा है? कैन आई गेस, कैन आई सी दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग? गपशप लग रही है? हम गपशप भी लगा रहे हैं यार साथ साथ में, मतलब चिलिंग्स करूँ वैसे। कल फिर ऑफिस जाना है सर, इट्स सो फन। आई एम ग्लैड, काश आप लोगों को मेरे बारे में पहले पता होता। अब मैसेजेस आ रहे हैं सर, काश पहले पता हो। तो क्यों नहीं बताता पहले, मैं क्या करूं? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अस्तगफिरुल्लाह। सर, हम तो आपकी क्लासेस भी इंजॉय करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 क्लासेस तो आपने टोटल ली। हुनैद ने बनाया आपका, बताया आपका। चलो, नीड अ फ्रेंड लाइक यू इन लाइफ। फ्रेंड लाइक यू इज अ फ्रेंड लाइक, ओके, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड है। सर, मैं आपको देखने के लिए ही आया हूँ। ओ नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं, रमज़ान का महीना, मैंने वीडियो बंद कर देनी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। सर, हाउ डू यू गेट मोटिवेशन टू टीच? आई डोंट नो। सी, द ओनली रीज़न व्हाई आई टीच इज़ टू इंस्पायर यू गाइज। मुझे कोई ना ज़रूरत है। तो मैं, आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं, आई वर्क एट PwC, which is the one of the big 4 accounting firms in the world. मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, a chartered accountant is teaching you chemistry. That's just so funny, man. PhD केमिस्ट से अच्छा काम कर रहा हूँ। सर, बताएं ना, आपकी क्लास से बाहर निकाला किस लिए था? सवाल पूछने पे निकाला था मुझे क्लासेस से, इसलिए मैंने कहा मैं इनकी ऐसी की तैसी हैं। सर, पढ़ा भी दें अब? अच्छा, जाहिद तंग हो रहा है, जाहिद करें पढ़ा दे। अच्छा, अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस, टेंशन है बच्चों को, बातें ना करें। अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज शोन। नाउ इफ यू लुक एट बेरियम नाइट्रेट, नाउ देखिए इन सवाल को टैकल करने का क्या तरीका है। इफ यू लुक एट बेरियम नाइट्रेट, you realize I write the formula for barium nitrate, right? Barium nitrate's formula is BaNO3 whole twice. Why? Because barium has a charge of 2 plus, nitrate is 1 minus, and you know for one barium ion you need 2 nitrate ions. That's why the formula is BaNO3 whole twice. Or you could just say cross multiply कर दें तो BaNO3 whole twice आता है। अब एक कंपाउंड में जब ऐसे सवाल आते हैं, एक कंपाउंड में आपने आंखें खुली रखनी, इसमें आपने 2 चीजें देखनी। बेरियम नाइट्रेट इज मेड अप ऑफ द बेरियम आयन and is also made up of the nitrate ion. Everybody agrees with me on this? It's made up of the barium ion, it's made up of the nitrate ion. Now, what you realize is there are different tests for these 2 ions, right? So, if you look at the barium ion, you know, if you perform a flame test on barium ion, it's going to be like around light green. It's going to give you a flame color of light green. So, you have to keep your eye out for this. एक compound में आपने दोनों चीजों को अलग-अलग देखना है. So if you look at the nitrate ion, we just did the test for the nitrate ion. You have aluminum, you warm it along with adding NaOH, and it's gonna give you what? It's gonna give you what? It's gonna give you your beautiful ammonia gas. Actually, barium nitrate is also a test. It's used as a test for the sulfate ions. So you realize that you acidify it with dilute. Oh, ये क्या लिखा है? You acidify it with dilute nitric acid, whatever solution you have, and then when you add barium nitrate to a solution, ऑब्वियसली, और बेरियम, कोई भी बेरियम का सॉल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बेरियम नाइट्रेट, कोई भी बेरियम का सॉल्युबल सॉल्ट होता है, अगर आप डालते हैं तो इट फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम नाइट्रेट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस। सर, ये कलर्स याद नहीं होते? लमार क्लासेस ले लो, कलर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। सर, हाउ डज वन अटेन सच अ बैड हैंड राइटिंग? मैं लिखता कम हूं, हमारा ज्यादा काम एक्सेल पे होता है, टका 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 लगे होते हैं। ये अच्छा, फ्लेम कलर्स कैसे याद करें? अच्छा, आई टीच यू हाउ टू रिमेंबर फ्लेम कलर्स। डू यू वांट मी टू नो हाउ आई रिमेंबर्ड फ्लेम कलर्स? ये देखें, यू नो योर कलर्स रॉइक बिव हैं। फ्लेम कलर्स चलो जल्दी बता देता हूँ, बाकी भी मैंने सारा सिखाया हुआ है, लेकिन चलो अब दिल चाहते गलत बात नहीं, मजाक करूँ। अच्छा, रॉइक बिव, रेड इज फॉर द लिथियम आयन, एंड देन यू गो ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड इज फॉर द कैल्शियम 2 प्लस आयन, येलो इज फॉर द सोडियम आयन, लाइट ग्रीन इज फॉर द बेरियम आयन, एंड देन यू मूव बैकवर्ड्स विद ब्लू एंड ग्रीन। देखिए, ओ आर में आप पीछे जाते हैं, ऑरेंज रेड, और इधर ब्लू ग्रीन में। दिस इज जस्ट हाउ आई रिमेंबर्ड इट। तो ये ग्रीन इज बेरियम 2 प्लस आइन। अब फिर कॉपर की बारी थी, तो इट्स ब्लू ग्रीन, तो पीछे जाना है। कॉपर 2 प्लस इज ब्लू ग्रीन, एंड देन लाइलैक इज द पोटेशियम आइन। वॉयलेट इंडिगो लाइलैक है, लाइलैक, वॉयलेट इंडिगो नहीं कहना, लाइलैक। तो मैंने इसके कलर्स ऐसे याद किए हैं, आप लोगों को भी तरीका सिखा दिया, ऐसे ज्यादा आसान है याद करना। देखिए, lithium ion, then you go from OR, calcium ion, then sodium ion, green, light green is barium ion,
सर एसएस लेना था बट राइटिंग यार। अच्छा, आई एम गोना टेक राइटिंग कोर्सेज, प्रॉमिस। ओ लेवल के पप्पू बच्चे हो यार, क्या राइटिंग सीख लो, सब पढ़ना सीख लो यार, इतनी अच्छी राइटिंग है। एमी बदनाम, बद से बदनाम, बुरा। सर इतनी भी बुरी नहीं है, ये लोग एमी गैस लाइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सेंटेंस मैंने अपनी सी भी डाल दिया। सर आई हैव हैंड राइटिंग बुक इफ यू वांट इट, प्लीज प्लीज सेंड कर दे। सर समझ नहीं आ रही, किस चीज़ की समझ, केमिस्ट्री की समझ नहीं आ रही। छत से चला, नहीं मजाक करो सर, इनको बोले पेन से लिखें आईपैड पे पता लगे। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। सर अब कोई आपकी हैंड राइटिंग पर बात करें उसका मैं गला दबा दूंगी। चिल करो यार, क्या माफिया है इधर यार, चिल करो, चिलिंग चिलिंग चिलिंग। सर आप तो लेजेंड हैं, क्वेश्चन मार्क। सर मेरी राइटिंग आपसे बेहतर है। आप राइटिंग देख लिया है, केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं। तो ये कुछ कलर्स थे आपको बता। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, इट्स अ टॉक्सिक गैस एंड इट्स न्यूट्रल ऑक्साइड एंड ब्ला ब्लू ब्ला। हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड। अच्छा, माय क्वेश्चन इज हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर वाटर? कोबाल्ट क्लोराइड आपके पास होता है, you add it to water, it would, if it's used as a test for water, it's gonna react with 6H2Os and it's gonna give you COCl2 dot 6H2O, right? A hydrated salt of cobalt chloride. Hydrated salt क्या होता है? वो substance which is bonded with the water of crystallization, which contains the water of crystallization. Cobalt chloride is blue in color and hydrated cobalt chloride is pink. Can, my question is hydrated cobalt chloride used as a test for water? हैं? यस 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 यस, गला दबा देने मैंने आप सबका। नो नो, थैंक यू सलाउद्दीन, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू माद। यस, हाइड्रेटेड नहीं होता इस्तेमाल, एनहाइड्रस इस्तेमाल होता है। हाइड्रेटेड इज अ रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, इट बिकम्स हाइड्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर बीइंग प्रेजेंट। और राम राम, अस्तगफिरुल्लाह। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? अल्लाह माफ करे। नो 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 नो, यू कैन, हाँ वो तो आप देख सकते हैं ना, वो तो हाइड्रेटेड है। वो तो मैं हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड आपके सामने रख दूं, आपको कहूं ओ इज दिस कैन दिस बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर वाटर? नो, इट ऑलरेडी कंटेन्स वाटर। कैडी टेस्ट होगा, टेस्ट तो तब होगा एनहाइड्रस लोगे, पानी में मिलाओ, और अगर वो हाइड्रेटेड हो गया तो मतलब पानी मौजूद है। सर आज तो आप खुश हैं, इतने बच्चे आपकी क्लास में फाइनली बैठ गए। रजिस्टर 50 थे और बैठते थे 15-20, और अब देखें माशाल्लाह, फ्री का सेशन है इसलिए बैठ रहे हैं और पेपर्स करीब आ गए। सो व्हाट वर एनहाइडस कलर्स? सर कोबाल्ट क्लोराइड एनहाइडस इज ब्लू, एंड इफ यू लुक एट एनहाइडस कॉपर सल्फेट दैट्स वाइट। तो ये अब आपको आनी चाहिए, दैट्स वाइट, रिएक्ट्स विद 5H2O एंड गिव्स यू कॉपर सल्फेट। कब मशहूर होगा यार, and that's blue, and this is white. And anhydrous copper sulfate is actually used as a test for water. Copper oxide क्या बोला है? Copper oxide is just a black solid, nobody cares। मतलब अब हर चीज के बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें कॉपर 2+ आयन है, सो इट्स गोना गिव यू ए ब्लू ग्रीन कलर इफ यू परफॉर्म ए फ्लेम टेस्ट ऑन इट है। अच्छा जी, if you look at ethane, ethane is an alkane, and alkanes are saturated hydrocarbon and blah 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 blah. Potassium iodide. See, potassium iodide is a reducing agent. It's a reducing agent. If you react it with chlorine, what's going to happen? So the chlorine is more reactive than iodine. It's going to displace the iodine from its salt solution. It's going to give you KCl plus I2. And you realize I2 aqueous is brown, and that's why potassium iodide goes from, if you react something with potassium iodide like chlorine, the color change, the observation would be colorless to brown. Why would it be colorless to brown? Because potassium iodide is an aqueous solution, and mostly aqueous solutions are colorless है। So iodine aqueous is brown। और बिल्कुल बिल्कुल चौधरी अली, बिल्कुल सही है, iodine aqueous is brown। Sir, but iodine was a gray black solid, it was a gray black solid, iodine aqueous is brown, and iodine gas are purple vapors। सर कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है? ये आपको आना चाहिए। पोटेशियम मैंगनेट, वैसे पता कैसे चलेगा वो मैंने क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन आपको ओ लेवल्स के लिए आना चाहिए। पोटेशियम मैंगनेट 7 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन योर कोर्स, एंड पोटेशियम आयोडाइड इज ए रिड्यूसिंग। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट इधर कैसे पता लगे वो तो आप देख सकते हैं, देखिए द आयोडाइड आयन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, और इधर जीरो हो जाता है। सो इट वेंट फ्रॉम -1 to 0, तो पोटेशियम आयोडाइड खुद ऑक्सीडाइज हो गया, went from -1 to 0, the iodide ion, potassium iodide was oxidized itself, और इसने इस क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ना क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन went from an oxidation state of 0 to -1। so you could identify it from this reaction। हाँ, अच्छा, इसके अगर टेस्ट की बात करूँ, पोटेशियम आयन कौन सा फ्लेम कलर देगा? लाइलैक कलर है। और आयोडाइड आयन का क्या टेस्ट है? व्हाट इज द टेस्ट फॉर द आयोडाइड आयन?
What's the test for iodine? You acidify it with nitric acid and you add silver nitrate to it. So what's going to happen? AgI banta hai, which is a yellow precipitate. हाँ जी, तो एक येलो प्रेसिपिटेट में सिमिलरली प्रोपीन इज एन एल्कीन, इट्स एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सर दीज रिएक्शंस आर टू कंफ्यूजिंग एंड मेरी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की 3 रिकॉर्डिंग्स देख लें, सारा आपको आ जाएगा है. पोटेशियम आयोडाइड और KMnO4 को मिक्स करें तो कलर चेंज क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड इज कलरलेस. KMnO4 is what? KMnO4 is what? That's purple, right? So if you react the two, iodine बनेगा which is brown, और potassium manganate जो है it'll also be it'll be reduced because it's an oxidizing agent. तो ये जो है आपके पास पर्पल आएगा. अब पर्पल और ब्राउन गूगल पे सर्च करें, पर when you mix purple and brown what color do you get? तो वो कलर बनेगा. सर यू टॉट दिस इन विच चैप्टर? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के आखिरी 3 लेक्चर्स हैं. सर ये रिकॉर्डिंग्स किधर से मिलेंगी? मिसनूर से. योर रिकॉर्डिंग्स ऑफ एसिड सॉल्ट्स आर ऑन यूट्यूब. अनफॉर्चुनेटली हैं तो नहीं, लेकिन मिसनूर से आप देख सकते हैं. ब्राउनिश पर्पल बनेगा, कह सकते हैं पर्पल. अच्छा, सोडियम ब्रोमाइड अगेन NaBr. अब देखिए ना, सोडियम ब्रोमाइड में आपने दो चीजें देखनी, सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन. सो बिकॉज ऑफ द सोडियम आयन यू आर गोना गेट अ येलो फ्लेम टेस्ट एंड फ्लेम कलर. एंड ब्रोमाइड आयन का क्या टेस्ट है? अगेन acidified with nitric acid, add silver nitrate to it, and you're gonna get AgBr, which is a cream PPT. तो दोनों आयंस को ना अब जब अलग अलग देखना शुरू कर देंगे तो ये सवाल बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए. सल्फर डाइऑक्साइड वी स्टडीड, इट्स एन एसिडिक ऑक्साइड, रिजल्ट्स इन एसिड रेन, ब्लू ब्ला ब्ला. जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? यार मेरे ख्याल से मेरी राइटिंग अच्छी है लेकिन पता नहीं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सर रिकॉर्डिंग समझा दें किधर से लेनी? ग्रुप में मैसेज कर लें, ग्रुप में तो मिस नूर का नंबर आ जाएगा, उनसे डिस्कस कर लें. एम्फोटेरिक oxides are those oxides which act as a base when reacted with an acid and acts as an acid when reacted as a base. No. That is not basic or acidic is wrong. They act as an acid, act as acid if you react it with base, and if you react it with an acid they are gonna act as a base. तो act as a base when reacted with an acid, इसलिए तो इसको एम्फोटेरिक कहते हैं ना. ये दोनों तरीके, ये कमिलियन है, कमिलियन. अच्छा, आपके कोर्स में कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं? एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. पहले लेड ऑक्साइड भी होता था, अब हटा दिया था. सर यू आर गेटिंग गैस लाइटेड, योर राइटिंग इज गुड, थैंक यू. सर यू माइट नीड ग्लासेस इफ दैट लुक्स नाइस. अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है यार. मैं रात को बैठा हूँ, सुबह मेरा ऑफिस होता है और मैं क्या करूँ? खत्म करें, खत्म खत्म. अरे मजाक करो. आई एम जोकिंग प्लीज, नाराज ना हो, नाराज ना हो, चिल करें. अच्छा, which of these now it says give the name of this substance. तो हमने नाम लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है. इस चीज को ना गौर से देखा करें कि एग्जामिनर क्या कह रहा है. अगर ये कहता है गिव द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, फिर इन सब क्या फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है जी. तो गिव द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट गिव्स अ लाइलैक कलर. लाइलैक किस आयन की वजह से होता था? पोटेशियम आयन की वजह से होता था. तो पोटेशियम आयन इज राइट हियर, पोटेशियम आयोडाइड में. सर I'm gonna say potassium iodide. अच्छा, आप लोगों ने पेपर में क्या ये बकवास करनी है जो ये मैं कर रहा हूँ? IODIDE, क्या आप लोगों ने ये काम करना है? DIDE होना चाहिए हैं. क्या आप लोगों ने ये काम करना है जो ये मैं कर रहा हूँ? ये बकवास करनी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना. आई एम जस्ट टीचिंग यू कि आपके जहन में इसको एक नजर देखें. बेरियम नाइट्राइड, ठीक है, नीचे गया, गिव्स अ लाइलैक कलर. आपके जहन में आना चाहिए कि उस कंपाउंड को मैं देखूंगा. सर ने पढ़ाया था कि कंपाउंड्स को सेपरेट सेपरेट देखिएगा, उस कंपाउंड को देखूंगा जिसमें पोटेशियम आयन मौजूद हो, ठीक है. तो दिस इज फॉर योर लर्निंग, ये सारी बातें. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कोर्स. लेकिन पेपर में आपने क्या करना है? आपने ये सवाल पढ़ना है और ऊपर जाके देखना है कि अच्छा, अब मुझे सर ने सिखा दिया कि चीजों को अलग अलग कैसे. सर स्पेलिंग्स पे मार्क डिडक्ट होते हैं, बिल्कुल. इफ द स्पेलिंग इज टू एब्सर्ड तो बिल्कुल कट होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेलिंग का 100% मार्क कट होता है. सर वो विगर विब ग्योर वाली चीज दिखाएं फिर से. स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले. विब ग्योर नहीं, मैं तो रोइक बिफ कहता हूँ. वैसे दिस पीस ऑफ आर्ट्स लुक्स गुड, थैंक यू. सर डोंट फॉरगेट टू अपलोड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब. चलो वो आखिरी दिनों में मैं कर दूंगा, लाइव क्रैश कोर्स कर दूंगा. और बताओ, इफ द राइटिंग इज टू अपसेट, राइटिंग पे मार्क्स नहीं काटते. मेरी तरह राइटिंग हो तो फुल मार्क्स देते हूँ. सर इफ यू सिट फॉर द केमिस्ट्री एग्जाम नाउ, आपको क्या मिलेगा? मैं डिस्टिंक्शन लूंगा. अच्छा, 9 of my students have already scored a distinction. मैं उम्मीद करता हूँ इस साल कोई ले. देखिए, द मोर वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स आई गेट द मोर चांसेस ऑफ द डिस्टिंक्शंस. सर आखिरी दिनों में नहीं ना.
ओके अरिशमन, आखिरी दिनों में नहीं ना, ठीक है, वैसे करा दूं, अपलोड कर दूंगा यार, कर लोड। चलो सर, ये क्लास बस सिंगल है या रेगुलर होगी? ये रेगुलर है। अब मैं आपके साथ चलूँ, इसके बाद कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है वो कर लेंगे, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आपके साथ मिक्स क्वेश्चंस कर लूंगा, और बताओ। उसके बाद एसिड बेसिस किसी बच्चे ने कहा था, वो भी कर लूंगा। 15 मार्च तक आपकी मर्जी है। 15 मार्च तक नो, डेली डेली मैं ये मोल्स बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल। 15 मार्च तक। वैसे मोल्स के मेरे 13 लेक्चर्स हैं टोटल, मैंने हर सवाल मोल्स का किया उसमें, तो वो अगर आप देख लें तो बड़ा बेस्ट हो जाएगा। हर एक करूंगा। 15 दिन आप लोगों की तरफ मैं डायरेक्टेड हूँ, तो 15 दिन 15 मार्च तक, जब तक पास्ट पेपर सेशन ईयरली नहीं होता, उसके बाद भी करूंगा, लेकिन फिर वो गैप्स में आ जाएगा। अच्छा, फॉर्म्स अ क्रीम प्रेसिपिटेट। अब बताएं, फॉर्म्स अ क्रीम प्रेसिपिटेट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड aqueous silver nitrate। एसिडिफाइड aqueous का मतलब ही यही है, एसिडिफाइड का मतलब ये कि इज एडेड HNO3 aqueous टू इट है। अच्छा, क्रीम प्रेसिपिटेट, यू हैव टू लुक फॉर द ब्रोमाइड आयन। वेयर इज द ब्रोमाइड आयन? सोडियम ब्रोमाइड राइट हियर, सो इट्स सोडियम bromide. It's an acidic oxide. Which of these is acidic oxide? Sulfur dioxide is an unsaturated hydrocarbon. Ethene था, alkene था, propene है। अच्छा, इधर ethene नहीं है, propene है। Is a product of incomplete combustion of fossil fuels. Carbon monoxide, incomplete combustion. We studied this above. Carbon monoxide. अच्छा, CO नहीं लिखना, कार्बन मोनोऑक्साइड लफ्ज लिखना, क्योंकि उसने कहा नेम इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ वाटर। ये एग्जामिनर ने कहा, तो ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट्स गॉट दिस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बस एन हाइड्रेटेड देख के ठक कर दिया, वो नहीं, एनहाइडस इज यूज, तो एनहाइडस कॉपर 2 सल्फेट है। एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, जो नाम ऊपर लिखा है, स्पेलिंग लिखी है, बस वही लिखे है। एक और कर लें सवाल? एक और करना है, ये सवाल करें? एक और ये करना है कि नहीं बस? नो देयर ओनली। आप पठान हो जी? बस अब्दुल्ला नासिर सिंह, बस वही जो ये बेचारे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मेरे सेशंस लिए हुए हैं, इन बेचारों से पूछ लेते हैं जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा। कर लें सर। 1 बजे UCL का मैच है। Wait, why isn't it cobalt wala? Saleha, it's not cobalt wala because cobalt is already hydrated. So it's this right here with you. So if it's this pink, it already has water molecules. How are you going to test it for water? If you add hydrated cobalt chloride to water, it's going to remain pink, it's not going to change. Even if water is present or even if it's not present, it's just going to be the same because it's already given you the result. प्लीज कंटिन्यू सर, इन्होंने आपसे पढ़ा है, हमें भी मौका दें। चले पढ़ लेते हैं, एक और कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हम टेबल 2.1। अच्छा, आपने 3 सवालों में, आई एम नॉट जोकिंग, इन दीज 3 क्वेश्चंस यू रिवाइज्ड सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम टेस्ट फॉर आयन, सम क्या, तो ये आपने बहुत चीजें रिवाइज की। सर सोडियम ब्रोमाइड वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दें। राजा हसन, वॉच द रिकॉर्डिंग। यू सच अ गुड टीचर, थैंक यू ईमान। अच्छा, ये देखो ना यार, सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन विल गिव यू अ क्रीम प्रेसिपिटेट, राइट? आयोडाइड आयन येलो देता है और क्लोराइड आयन वाइट देता है, एंड यू नो द टेस्ट फॉर इट। इट्स यू एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट। और होता क्या है किडो, होता क्या है, इफ यू हैव, चलो आपके लिए अब ये कर रहा हूँ यार, देख लो अब। इफ यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट टू इट और कोई ब्रोमाइड आयन मौजूद हो, तो यू नो दैट ऑल ग्रुप सेवन्स आर soluble except for LMS, lead, mercury and silver। तो चूंकि ये सिल्वर आयन है, तो सिल्वर के साथ इट स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, विच इज क्रीम प्रेसिपिटेट है। तो इसलिए मैंने इधर लिखा था सिल्वर ब्रोमाइड। अगर येलो होता तो मैं फिर सोडियम ब्रोमाइड लिखे हैं। अगर येलो होता तो इधर कोई भी आयोडाइड आयन होता, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, वो लिखता फिर। ठीक है, मेक सेंस? सर टेस्ट फॉर आयंस की ट्रिक बता दे। वो 2 वीडियोस देख लें, अब फ्लेम्स तो मैंने बता दी, वो 2 वीडियोस में मैंने आपको सेब की एग्जांपल्स दी, क्या क्या दी, वो मिस नूर से कर लें तो वो मिल जाएगा है। अच्छा, टेबल 2.1 gives information about particles. Why is he calling it particles? Why is he calling it particles? सर आप ज़्यादा ही खुश है, वरना आपका गुस्सा तो तोबा। प्रार्थना, आपने मेरा गुस्सा किधर देखा है? मैं तो गुस्सा कभी भी नहीं करता। शायद आप बिल्कुल इनिशियल क्लास में थी, वो पहली क्लास नहीं हुई थी वो, जिसमें पता नहीं किधर से उठ के बच्चे आ गए थे। मैं तो खुशी होता हूँ यार, वो पहली बिल्कुल इनिशियल डेमो क्लास में शायद आप थी हैं। तो अब देखो, गलत बात होगी तो। बेस्ट केमिस्ट्री टीचर्स आई एवर कम अक्रॉस ड्यूरिंग माय ओ लेवल जर्नी, थैंक यू हानिया। आई एम जस्ट obliged।
थैंक यू। अच्छा, पार्टिकल्स क्यों कह रहे? बिकॉज पार्टिकल्स इनकम्पासेस एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। वो कह रहे हैं एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको पार्टिकल्स कह रहा हूँ। सर वो तो आपके टॉप 10 रेज मोमेंट्स वाली क्लास थी। हाँ टॉप, वो मतलब वो तो अनएक्सेप्टेबल बात थी, लेकिन नॉर्मली बड़ा चिल होता हूँ मैं हमेशा हमेशा ये कहता था। मैंने जो अपने प्रोफेसर से, सर डू यू नो सर जैन, आई नो ऑफ हिम, आई प्रॉब्ली ही डजंट नो मी, मैथलीड बाय साद एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वी वो अच्छा बंदा है, बहुत ज़बरदस्त, ही टॉट मी। हाँ वो किसी ने बड़ी गंदी गालियाँ लिखी थी चैट में, इसीलिए मैं तब गया था। सर इज़ जस्ट अ चिल गाय। हाँ जी, तो ये है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मेरा काम है बोर्ड काला करना। आप लोगों के साथ मैं बैठा रहूंगा जब तक आप कहेंगे। सर आई ऑल्सो टेक क्लासेस बाय मैथड, इज अ गुड टीचर, वेरी गुड टीचर, ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू लाइव स्ट्रीम रिसेंटली। तो वो अब लाइव स्ट्रीम का मौका नहीं मिल रहा फिलहाल, तो करेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे पूरा सिखाया। कल मैं उनके, परसों मैं बैठा था, बल्कि कुछ दिन पहले ही बैठा था। सर फिर 1 बजे तक कराएं क्लास? ओ भाई नहीं नहीं नहीं, और नहीं और नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं। आई शो सुलेमान। यार थोड़ी दिन हो जाए ना, फिर आपको तक फुल रातों तक आपके साथ। असल में मेरा क्लाइंट चल रहा है अभी फिलहाल, इट्स एन इंटरनेशनल क्लाइंट। नाम मैं नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा है यार, तो सोना भी है, बिल्कुल सोना है। चलिए। अच्छा, if you look at these particles, what you notice is he's given you the number of electrons, he's given you the number of neutrons, and he's given you the number of protons, right? And if I ask you something, what does the number of protons and neutrons, if you add the number of protons and neutrons, what does that give you? That gives you something known as the mass number. Yes. And what's the other term for mass number? What's the other term for mass number? It's also the nucleon number. Thank you very much. So the other term for mass number is also the nucleon number. My question is, where can the mass number and nucleon number be different from what's written in the periodic table? Absolutely. Periodic table में जो होता है वो averaged out होता है, right? लेकिन ये जो mass number और nucleon number है, for this you will not go into the periodic table. If they ask me what is the mass number of particle A, I'll add these two. I won't go to the periodic table and check, oh my god, proton जिसमें 5 protons है उसके ऊपर देखिए, that's the AR, right? अच्छा जी, तो अगर मैं देखूं, I can find something else as well. I could also look at these two right here. I can look at the number of electrons and protons, and if they are equal, I'll realize that it's an atom. It's an atom. It's not an ion. It's not a charged species. If it were a charged species, it would have different number of protons and electrons. And my question is, can you look at the number of proton and identify which element it is? Absolutely. Proton number is the identification card. It's your CNIC number for elements, right? जैसे आप सबके CNIC number होता है, proton number से direct आप देख सकते हैं periodic table में जाके. So if you look at the periodic table and look at the proton numbers, you can literally find out which elements these are, right? So if I go to the periodic table, I think proton number 5 is boron, proton 10 is neon, 13 is aluminum, 16 I believe is what, sulfur I guess, 17 क्लोरीन है, और 15 जो है फॉस्फोरस है, तो रट गए ये चीजें हैं। तो यू कैन लिटरली गो टू द पीरियोडिक टेबल एंड चेक आउट विच एलिमेंट्स दे आर टॉकिंग अबाउट। डन। अच्छा, अब देखिए, B is also an atom. Why? Because it has 10 protons and 10 electrons. Done, sir. But if you look at C is an ion. Why? Because it has 13 protons and 10 electrons. लेकिन ये एग्जामिनर को थ्योरी में कैसे, एग्जामिनर पूछता है हाउ डू यू नो दैट C is an ion? हाउ डू यू नो दैट C is an ion? और इनफैक्ट देखिए, C में 13 protons है और 10 electrons है। इफ इट वर एन एटम, ऐसे सोचें, if it were an atom, it would have had 13 protons and 13 electrons, because atoms have no charge. But now there's a loss of 3 electrons, and loss of electrons means that it has formed a positive ions, right? So if it had 13 protons and 13 electrons, it would have been an atom, which would have been, aluminum right here. But now aluminum has lost 3 electrons, so it has an aluminum 3 plus charge. Examiner जब theory में ये सवाल पूछता है ना, वो कहता है कि how do you know, ऐसे करके सवाल है, हाउ डू यू नो दैट इट इज अ चार्ज स्पीसीज? आपने कहना है कि इट हैज 3 more protons than electrons. It has 3 more protons than electrons, or 3 fewer electrons than protons. 3 more protons than electrons. इसमें डन। रिमेंबर, प्रोटॉन्स आर नेवर लॉस्ट और गेन, इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन होते हैं, सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिख रहे हैं। अच्छा जी, तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि सर ये भी एक एटम है, ये एक आयन है। कौन सा आयन है? एल्यूमिनियम 3+ आयन बना हुआ है। अगर डी को देखें, डी हैज 16 प्रोटॉन्स बट 18 इलेक्ट्रॉन्स। If it were an atom, ऐसे सोचा करिए, if it were an atom, it would have 16 protons and 16 electrons. Protons and electrons would be equal. But now it has 2 more electrons. So 2 more electrons
electrons mean that it has formed a 2 minus ion, so it's sulfur 2 minus है. और chlorine को देख ली, Cl को देख ली, it has 17 proton and it has one more electron than proton, so it has formed a chloride ion. और phosphorus देखिए, it's also in its atomic state, ये एक atom है. Done. So it says give letters देने, भाई याद रखिए letters. ये बड़ी गलती करते बच्चे, इनके नाम लिखना शुरू कर देते. No, letters. So letters of all the particles which are atoms, सब particles की बताएं. Sir, which of these are atoms? Uno, dos, tres. A, B, F. है. Which of these are ions with a charge of 2 minus? That's D right there, sulfide ion. Sir, cations कौन से हैं? Cations, खुशी के ions, खुशी. Sir, that's C arino, बस C है और तो कुछ नहीं है. लिख लूं C. State the atomic number of A. Atomic number क्या होता है? It refers to the number of protons. It refers to the number of protons in the nucleus of an atom. ये इसकी definition है, आपको आनी चाहिए. So atomic number of A. Atomic number just literally means tell me the number of protons. That's 5. That's 5. मक्खन सवाल है, मक्खन. ओ मक्खना. वो चिली ऑन द ट्रैक, अस्तगफिरुल्लाह. Some bought here for a snack. रमजान का महीना है और गाने लिख रहे हैं चैट्स में, क्या गाने? मुझे भी आता है, सॉरी यार. डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन डी में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? You just add the protons and neutrons, that'll give you the nucleons, right? So 16 plus 17, that's what? 16 plus 17, that's what? 33. अच्छा, वैसे पीरियोडिक टेबल में जाके देखिए क्या आ रहा है. सल्फर पीरियोडिक टेबल में क्या आ रहा है, ये देखिए. जो बच्चा पीरियोडिक टेबल से लिखेगा वो 32 लिखेगा और वो गलती करेगा. दिस 32 इज द AR, रिलेटिव एटॉमिक मास. इट्स नॉट द मास नंबर. मास नंबर एक इंडिविजुअल आइसोटोप का होता है. दिस इज द AR. दे हैव टेकन द एवरेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, इसीलिए वो 33 है, वो आइसोटोप था, और ये 32 है. इनमें एवरेज लिया हुआ है. जो मल्टीपल आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट एटम्स, different atoms of the same element which has the same number of protons but different number of nucleons. Sir, so is this an isotope or an ion? नहीं, it is an ion, लेकिन एक आइसोटोपिक मास लिया हुआ है ना. आइसोटोप के इंडिविजुअल मास नंबर, तो उसने कहा चलो इसके ऊपर एक चार्ज डाल देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि बच्चा पीरियोडिक टेबल से उठा के देगा कि इसमें ऐड करेगा. सो यू शुड नो दैट द mass number varies, so you don't go to the periodic table for the mass number or the nucleon number. Whatever data is given, you take the protons and add it to the neutrons. ठीक है. State the electronic configuration of D. Electronic configuration क्या होती है? Refers to the distribution of electrons in shells, right? So how are they distributed in D? D has how many electrons? Right here, that's 18. So how will they be distributed? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8. 288, not 287. क्यों 287? 18 है. 7 आपने इसलिए किया क्योंकि आपने प्रोटॉन नंबर्स को देखा. Electronic configuration refers to the distribution of electrons in shells. है. स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ एफ. ग्रुप नंबर ऑफ एफ कौन सी ग्रुप नंबर है? अब देखें, दो तरीके हो सकते हैं. एक तरीका, या दोनों देख लें, दोनों सुन लें. एक तरीका ये, बिकॉज इट्स एन एटम यू कुड टेक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन which is 285 and check out कि oh my god it's in group 5 because it has 5 electrons in its outermost shell because it's an atom. But what I would suggest is, because you know the proton number, डायरेक्ट जाए पीरियोडिक टेबल में देखें प्रोटॉन नंबर 15 फॉस्फोरस का है और कौन से उसमें आ रहा है ग्रुप में, दैट्स इन ग्रुप 5. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर प्रोटॉन नंबर है डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में जाए करें, बिकॉज प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस. ठीक है. अगर मैं कहता व्हाट इज द ग्रुप नंबर फॉर डी, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नहीं कर सकते थे. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू एट द गेट को, राइट. शुरू में मैंने आपको ये बात बताई कि अब ये इससे मैं 288 आ रहा है, तो 288 मैं कैसे, 288 का मतलब है ग्रुप 8 में, लेकिन असल में तो ये ग्रुप 6 में, राइट. सो रियलाइज कि फिर डायरेक्ट प्रोटॉन नंबर को पीछे जाया करें. स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ एफ. कौन सा ग्रुप नंबर आ गया था? 5. पंज. स्टेट द पीरियड नंबर ऑफ बी. बी फॉर बॉल. अब देखिए पीरियड नंबर क्या है? एटम्स, sorry, the electrons and protons are same, so I could literally just take into consideration the electronic configuration which is 2 8. तो इसका मतलब है सर ये एक नोबल गैस है, नियॉन है, हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, and it has 8 electrons in its outer motion. And how many periods does it have? अच्छा, पीरियड्स क्या होते हैं? सर लेटर नहीं लिखना, नहीं, इसमें तो वो कह रहे ग्रुप नंबर बताओ ना. स्टेट द ग्रुप नंबर, तो नंबर तो 5 है. स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें. डिटरमिन द नंबर बताएं. स्टेट द एटॉमिक, तो इधर तो नहीं, इधर लेटर्स आने थे. ये देखिए A पार्ट 1
2 3, अब देखिए फिर इधर से बी शुरू हो रहा है। अच्छा याद रखिए पीरियोडिक पीरियोडिक जो 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 क्या कह रहे थे, पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स टेल यू द नंबर ऑफ शेल्स। अब ये एक रट्टा वाली बात है लेकिन बड़ा सिंपल है यार। देखो ना, पीरियड, ये पीरियड मुझे शेल्स क्यों, ये शेल्स मुझे पीरियड क्यों बताते हैं? देखिए पहले में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इसको ऐसे बेशक लिख लें, ज़्यादा बेहतर है इसको ऐसे करें। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। भाई इसको क्या मौत पड़ रही है? आप लोगों के लिए भी ग्लिच कर रहा है ये, पता नहीं क्या मौत पड़ रही है। तो दूसरे में 8। अब देखिए पहले शेल में 2, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8। सो द पीरियड नंबर, अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ पीरियड 2 में है, इसका मतलब है उसमें 2 शेल्स है। अच्छा ये 2 हम काउंट करते हैं ना, 1 2, ये काउंट करने से बेहतर है हम ड्रॉ करके देख रहे हैं। 1 2, 2 शेल्स हैं, तो ये 2 शेल्स ही हैं। बच्चे काउंट करते हैं, ओ 1 2 3 4, तो काउंट करने की ये बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। सो इट्स 2 8, और 2 8 का मतलब है कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। सो इट्स गोना बी इन पीरियड 2। सो पीरियड नंबर बताएं। देखिए किसने ये सवाल पूछा था कि लेटर्स हैं कि नहीं। अब ये अलग सवाल बन रहे हैं ना, वो ए पार्ट 1 2 3 था, तो पीरियड नंबर क्या है? व्हाट्स द पीरियड नंबर? द पीरियड नंबरिनो इज 2। पीरियड 2 में है, ख़त्म जी। दूसरा सवाल करें, एक और करना है कि बस। I somehow still aren't clear with the difference between an ion and an atom. The main difference is an ion is charged. Absolutely, Nakia. An ion is a charged species, right? Any charged species is called an ion. An atom is not charged, right? The protons and electrons in an atom are equal, so it's not charged. But ion, whenever there's a gain or loss of electrons, it forms an ion. एक और सवाल करें, करें सर, ब्रेक दबा दें, बस सर सो जाएं, आप नींद आ रही है सर, आई एम स्केर्ड फॉर केमसीआईज। डोंट बी स्केर्ड ईमान, आई प्रॉमिस, जस्ट टेक द पास्ट पेपर सेशंस, पास्ट पेपर सेशंस करें, टॉपिक सेशंस भी लेने में सही है, हो जाए, अल्लाह खैर करे। और अगर बहुत टेंशन हो रही तो पास्ट पेपर सेशन देख के ले लें, आपकी मर्जी है यार। उनको दिखाइए से जो सम आती है, मैं तो रौनक वो समझता है कि बीमार है। ये क्या बोल क्या रहे हो भाई? बोलना कहना क्या रही, कहना क्या चाहते हो? सर करवाएं करवाएं सर, नहीं सर चलें। अच्छा, कैन वी हैव अ वोट प्लीज? आई आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन डू वन मोर क्वेश्चन, इतनी थोड़ी सी है। कैन वी हैव अ वोट? कैन एवरीबडी रेज योर हैंड, दोज ऑफ यू वांट मी टू डू अनदर क्वेश्चन? कैन वी हैव अ वोट? मैं एक और कर लूंगा। 1 2 3, 3 बच्चे, 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 और 10 11, लेट्स रीच 20। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, 20 रीच हो गए हैं, करा दूंगा 23 बल्कि। इफ इट रीचेस 23 आई विल डू अनदर क्वेश्चन। इट्स 14 15 16, ओके 16 पे जा रहे हैं। रेज योर हैंड, आई कैंट सी द चैट, चैट में लिखे जा रहे हैं यस 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 यस, रेज योर हैंड। इट्स 16 16 16 16 16, वी आर गोइंग अबव 16। सर वेट 20 मिनट्स, चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, 5 मिनट गपशप लगा लेते हैं, 5 5 10 मिनट गपशप लगा लें फिर कर देते हैं। चलो आई पॉज द रिकॉर्डिंग स्टिल देन, लोअर योर हैंड्स। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, कर लेते हैं। 5 5 मिनट आई एम रिज्यूम रिकॉर्डिंग। गपशप बहुत लग गई है अब, एक बस सवाल कर रहा हूँ यार, अब बच्चे कह रहे हैं तो क्या कर सकता हूँ, हैं। अच्छा, if you look at calcium oxide, you know that calcium oxide is obviously a basic oxide, एंड ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड, और ये हमने कहीं इस्तेमाल होते हुए भी देखा है। वी सीन कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग यूज्ड समवेयर। वेयर इज कैल्शियम ऑक्साइड यूज? इट्स यूज्ड इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इट रिएक्ट्स विद, अभी ऊपर पड़ा है, इट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव यू कैल्शियम सल्फाइड। दिस इज कैल्शियम सल्फाइड, इज नॉट कैल्शियम सल्फेट, प्लीज, इज नॉट कैल्शियम सल्फेट, इज कैल्शियम सल्फाइड। SO4 2 minus is the sulfate ion, SO3 2 minus एक चीख मारता है, you know, there's a reduction in oxygen with the sulfite ion, yeah. Nitrate ion is what? NO3 1 minus, एंड एक ऑक्सीजन कम करके अगर आप लिखते हैं NO2 1 माइनस, दैट्स द नाइट्राइट आयन, एक चीख मारता है। तो यू रियलाइज दैट कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इट्स यूज्ड एज टू न्यूट्रलाइज दिस सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में इस्तेमाल होता है। और कैल्शियम 2+ आयन, इफ आई टू वर टू परफॉर्म a test on this calcium 2+ ion, let's suppose, yeah, if you have a calcium 2+ ion, what color will it give you in the flame test? Obviously it's going to give you a orange red color है, ठीक है जी। अच्छा, सल्फाइड नहीं होता, सल्फाइड इज S2-। ये मैंने नेमिंग सिखाई है बच्चों को, क्योंकि बच्चे A लेवल्स तक कंफ्यूज होते हैं। दिस इज द सल्फाइड आयन, दिस इज द सल्फेट आयन, दिस इज द सल्फाइट आयन, ITE।
तो ये नेमिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में मैंने पढ़ाई है, बल्कि नहीं, चैप्टर 3 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अभी पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट? It is a simple covalent molecule. It is acidic in nature. It turns damp blue litmus red. It's formed from the complete combustion of, carbon-containing fuels. A greenhouse gas causes global warming. And then what could you do as a solution for carbon dioxide? You can plant more trees, less use of fossil fuels and whatnot, right? So we already discussed this above. Carbon monoxide, again, it is a result of incomplete combustion. अब ये चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगे, ऊपर हमने 3 दफ़ा तो कर लिया। It's a result of incomplete combustion of carbon-containing fuels. It's a toxic gas, or you could say it's a poisonous gas. It's a simple covalent molecule. क्यों ये दोनों simple covalent molecules हैं? This is an ionic compound, है? Calcium 2 plus ion and O2 minus. This is an ionic compound. There's a transfer of electron from calcium to oxygen, right? तो ये एक ionic compound है, forming oppositely charged ions which are held together by strong electrostatic force of attraction. Done? तो कैल्शियम का, अच्छा, लेड क्लोराइड को अगर मैं देखूं तो लेड क्लोराइड PbCl2। अब इसके बारे में इतना मुझे नहीं पता, लाइक एज ए स्टूडेंट आई एम थिंकिंग, इतना एक स्टूडेंट को नहीं पता, लेकिन क्लोराइड आयन का टेस्ट आपको पता है कि इफ यू एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट टू इट, इट्स गोना फॉर्म AgCl, एंड AgCl सॉलिड इज ऑब्वियसली ए वाइट PPT, राइट? तो इतना मुझे पता है। लेड आयन के बारे में मैं कुछ नहीं, हाँ, लेड आयन इज अ टॉक्सिक मेटल आयन, ये मैं बता सकता हूँ। व्हाट स्टूडेंट्स थिंक लाइक थिंग्स लाइक दैट, यू शुड थिंक लाइक दैट नाउ, है। लेड आयन इज अ टॉक्सिक आयन, और ये लेड आयन मिलता किधर है? इट्स वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, याद है आपको, पढ़ाया था कि वाटर जो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं उसमें लेड टॉक्सिसिटी होती है। स्पेशली जो KPK के लोग हैं, जो लोअर दीर के हैं और जो स्वात वगैरह के हैं, वो ये पानी पीते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। ये लेड टॉक्सिसिटी जो है, इट कैन रिजल्ट इन योर किडनीज फेलिंग एंड व्हाट नॉट, राइट? सर, व्हाई डू वी एसिडिफाई इट? टू रिमूव एनी कार्बोनेट आयंस। तो अगर कोई कार्बोनेट आयंस हो ना, वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ताकि कोई कार्बोनेट जो है इस इंटायर एक्सपेरिमेंट को खराब ना करे। दैट्स व्हाई यू एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड, ताकि अगर कोई और कार्बोनेट क्यों होगा? क्योंकि आप हवा में, आपके कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिसॉल्व इन दैट सोल्यूशन टू गिव यू द कार्बोनेट, है ना? ठीक है। अच्छा, प्रोपैन 1 ओल अगेन इज एन अल्कोहल। अल्कोहल किधर किधर क्या क्या रिएक्शंस अल्कोहल कर सकते हैं? सर, अल्कोहल्स कैन अंडरगो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इज गोना गिव यू, फ्रॉम प्रोपैन 1 ओल you could get propanoic acid, right? And propanoic acid and propanol can react together under what? Concentrated sulfuric acid and heat. It will give you an ester as well, right? And you realize that the oxidizing agents in your course is potassium manganate 7, acidified aqueous potassium manganate, right? तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेनोल से प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। और प्रोपेनॉल बनता कैसे है? हाउ इज प्रोपैन 1 ओल फॉर्म? फ्रॉम फर्मेंटेशन? एब्सोल्युटली रॉन्ग। फर्मेंटेशन से सिर्फ एक ही अल्कोहल बनता है, और वो कौन सा है? विच अल्कोहल इज फॉर्म फ्रॉम फर्मेंटेशन? दैट्स एथेनॉल, प्लीज। KMnO4 is an oxidizing agent, not a reducing agent. It oxidizes alcohol into carboxylic acid, right? It gives it oxygens. हाँ जी, तो एथेनॉल फर्मेंटेशन से बनता है। दिस इज मेड फ्रॉम द हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, राइट? प्रोपेनॉल है तो प्रोपीन से बनेगा। एंड व्हाट डू यू रिएक्ट इट विद? यू रिएक्ट इट विद स्टीम। यू प्रोवाइड कंडीशंस व्हिच इज 300 डिग्री सेल्सियस, 60 एटमॉस्फेयर्स, एंड अ कैटलिस्ट व्हिच शुड बी एन एसिड, बट इन दिस केस आई विल जस्ट यूज एसिडिफाइड फॉस्फोरिक एसिड। आप वैसे भी एसिडिफाइड एसिड वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फॉस्फोरिक लिखता हूँ। फॉस्फोरिक लिखने बेहतर है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए, नाउ यू गाइस कैन डिफरेंस। सोडियम नाइट्रेट में क्या ऐसी चीज है? सर, हाउ डू वी नो आइसोमर्स? किडो आइसोमर्स पढ़ा दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता लग जाएंगे, हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, सोडियम नाइट्रेट, अब आपका दिमाग काम शुरू करना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट हैज द सोडियम आयन, द नाइट्रेट आयन। तो यू नो द टेस्ट फॉर सोडियम आयन, फ्लेम टेस्ट है सर, इट विल गिव यू अ येलो फ्लेम। नाइट्रेट आयन के लिए क्या है सर? एल्यूमिनियम करें सर, वार्म करें एंड ऐड NaOH टू इट, सो इट शुड गिव यू दिस ब्यूटीफुल पंजेंट स्मेलिंग, स्वेट स्मेलिंग, पिस स्मेलिंग गैस कॉल्ड अमोनिया, ठीक है। तो अब आप इनको अलग अलग देख सकते हैं। सर, अनरिलेटेड टू द टॉपिक, बट व्हाई इज डाइल्यूट एसिड्स यूज्ड टू मेक सॉल्ट्स? द क्वेश्चन, नो, यू कुड यूज एनी एसिड्स। सॉल्ट्स बनाने के तो 3 तरीके ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, टाइट्रेशन और एक्सेस मेथड। अब इसमें से कौन सी सॉल्ट्स की बात करें, तो उस हिसाब से मैं जवाब दूंगा, जरूरी नहीं है। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट सोडियम नाइट्रेट, सो वी डिस्कस क्या, सोडियम नाइट्रेट में ये कहानी हो सकती है हमारे पास। अच्छा, सोडियम सल्फेट में, अगेन सोडियम सल्फेट में द सोडियम आयन कैन गिव यू अ येलो फ्लेम विद द फ्लेम टेस्ट। एंड द सल्फेट आयन का टेस्ट वैसे क्या है? व्हाट्स द टेस्ट फॉर सल्फेट आयन? You could acidify it with dilute nitric acid,
and then what you do is you add barium nitrate to it. अच्छा, barium nitrate हम इसलिए डालते हैं क्योंकि barium nitrate is soluble in water, right? तो barium nitrate चूंकि soluble होता है पानी में, और barium nitrate soluble होता है, but when the barium ion comes into contact with the sulfate ion, it forms a white precipitate. My question is, वैसे तो this is a very pet chemical that we use, which is barium nitrate, but can we use any other salt, soluble salt of barium? कैन वी यूज एनी अदर सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ बेरियम? बेरियम नाइट्रेट तो वो तो सिलेबस कहते हैं इस्तेमाल करो, लेकिन वैसे सिलेबस ये दिल चाहता है मेरा कि कैम्ब्रिज का गला दबा दूं ना, कि बच्चों पे कहे कि बेरियम जो है नाइट्रेट इस्तेमाल करें, बट यू कैन यूज एनी अदर सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ बेरियम एज वेल। बेरियम क्लोराइड भी आप इस्तेमाल करें, यू नो दैट ऑल ग्रुप 7 आर सॉल्यूबल एक्सेप्ट फॉर एलएमएस, लेड, मर्करी एंड सिल्वर। तो अगर मैं बेरियम क्लोराइड भी इस्तेमाल करता, वो भी एक्वस होता, बेरियम 2+ आयंस आपको दे। बेरियम कार्बोनेट नहीं 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 नहीं, बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्यूबल। All carbonates are insoluble except for group 1 ammonium and ammonium. ग्रुप 1 एंड अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल है। सर बेरियम क्लोराइड कहाँ लिखेंगे तो मार्क्स दे देगा कैम्ब्रिज? अच्छा, देना चाहिए उसको उसूलन, लेकिन उसने स्पेसिफाई की कि बेरियम नाइट्रेट लिखी। लेकिन आप देखें सवाल में, मुझे पता है इस सवाल में देखिए बेरियम क्लोराइड इस्तेमाल की, तो पहले से मैं पूछ रहा था आप लोगों से। अच्छा, sulfur dioxide, again it's an acidic oxide, results in acid rain. Use less sulfur fuels, use fuels with less sulfur content, low sulfur content. And the way you get rid of these SOx is you use a you either use fuels with low sulfur content, or you perform flue gas desulfurization. अच्छा, नॉक्स का क्या इलाज है? नॉक्स का कैटालिटिक कन्वर्टर। मेरे एक सवाल है, थ्योरी में एक दफा 3 मार्क का सवाल आ गया था, how do you reduce acid rain? NOx is not KNOx, it's NOx. I'm calling ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को मैं नॉक्स कहता हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को मैं सॉक्स कहता हूँ, और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को कॉक्स कहते हैं। दिस इज द केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, मेरे एक सवाल है, एक दफा सवाल आया था एग्जाम में 3 मार्क का, हाउ डू यू रिड्यूस एसिड रेन? बच्चों ने अपनी से टर्नेलियाँ मारी, अस्तगफुरुल्लाह, बच्चों ने अपनी से टर्नेलियाँ मारी सर, जो है प्लांट ट्रीज एंड प्लांट दिस और प्लांट, ओ नहीं, एसिड रेन किन दो चीज, गो टू निप द इवल इन द बड, याद, एसिड रेन किन दो चीजों से होती है? एसिड रेन is because of SOx and NOx. It's because of the oxides of nitrogen and the oxides of sulfur. So how can you reduce acid rain? You can reduce acid rain by reducing the formation of these two. तो flue gas desulfurization, यूज लो सल्फर फ्यूल्स, और नॉक्स को क्या करें? नॉक्स का क्या इलाज है? कैटालिटिक कन्वर्टर। तो 3 मार्क इन 3 पॉइंट्स के थे, इसके अलावा एग्जामिनर ने कोई मार्क नहीं दिया। तो याद रखिएगा, ऑलवेज गो टू द बिल्कुल बेसिक के। अच्छा, अगर एसिड रेन रिड्यूस करना है तो किन दो चीजों से एसिड रेन होता है? वॉक इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स, दैट्स अ गुड वन। अच्छा, वाटर क्या है? वाटर क्या बोले? वाटर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट अंडर द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव यू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और वाटर की, और एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड के साथ टेस्ट कर लेगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ टेस्ट करेगा, एंड व्हाट नॉट है। अच्छा, now it says each compound may be used once, not and once only. Is a toxic gas produced by the incomplete? Which one of these is a toxic gas? Carbon monoxide. Remember, it's a neutral oxide. It's not an acidic oxide, but it is a toxic gas, right? That's carbon monoxide. यार बहुत लंबी हो गई है क्लास। Turns anhydrous copper sulfate blue. So it's copper oh, why am I writing cobalt? It's copper sulfate and it's anhydrous. Anhydrous, अच्छा, anhydrous का मतलब क्या होता है? Substance without water of crystallization. Hydrated क्या मतलब होता है? Substance with the water of crystallization, which contains the water of crystallization. Water of crystallizations क्या होते हैं? Water of crystallization are those water molecules which are present in a hydrated salt. ये 3 डेफिनेशन आपके कोर्स में। तो कॉपर सल्फेट अगर पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, इज गोना गिव यू अ हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट which would confirm the test of water. This is whiter and this is blue. खत्म जी। सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कौन रखता है? दैट्स योर वाटरिनो। अच्छा, मेरे एक सवाल है, इसका मतलब है अगर मैं एक कप लूं और उसमें मैं कलरलेस सोल्यूशन डालूं, और मैं आलिया को कहूं या बीहा को कहूं, बहुत सारे बच्चे, अरबीन को कहूं कि आप ये पी लें, इसमें पानी है, और अरमीन कहेगा नो सर, हाउ डू आई नो यू नॉट एडेड एन एसिड और ए बेस टू इट? मैंने कहा अरमीन यार यकीन रख लो, आलिया यकीन रख लो, पानी है कलरलेस सोल्यूशन। आपने कहेगा नहीं सर, ये दोनों भी एसिड और बेसिस आर आल्सो कलरलेस, आई एम गोना टेस्ट फॉर वाटर। सो व्हाट यू डू इज यू ऐड
anhydrous copper sulfate to it or anhydrous cobalt chloride to it, and it gives you a positive test, right? It indicates कि अच्छा पानी मौजूद था इसमें, तो आप उसको पीना शुरू कर देंगे? क्या आप उसको पीना शुरू कर देंगे? नहीं, बिकॉज रिमेंबर, टेस्ट फॉर वाटर इज डिफरेंट फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर। एसिड भी आपके पास यही कर चेंज देगा, बेस भी एल्कली अगर हो वो भी यही देगा, पानी अगर हो, अगर मडी पानी जिसमें सुएज हो, पिशी हो, सब कुछ मिलाया हो मैंने, वो भी आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा, बिकॉज दे ऑल हैव वाटर इन देम। इफ यू इवन टेक एन एसिड एंड यू ऐड दिस कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू इट बिकॉज ऑफ दिस एक्वस सोल्यूशन, बिकॉज एक्वस का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व इन वाटर, तो उसमें कुछ कभी भी कहीं भी वाटर मौजूद हो, चाहे वो साफ हो नहीं हो साफ, it'll give you a positive test. So remember, for purity of water, we don't check it out with anhydrous copper sulfate or anhydrous cobalt chloride. Purity के लिए हम ये नहीं देखते. This is only for the presence of water, but this does not confirm its purity. Purity कैसे confirm होती है? With the help of the melting point and boiling point. तो ये मैं हर सेशन में 10 दफ़ा बताता हूँ, और फिर भी एक आध बच्चा एग्जाम में गलत करके आता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से प्योरिटी टेस्ट होती है। प्योर वाटर विल बॉयल at 100 degrees Celsius and melt at 0 degree Celsius, और अगर impurity decreases the melting point and increases the boiling point है। अच्छा, लीड्स टू डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर इन रिवर्स। ये डीऑक्सीजनेशन इज बिकॉज ऑफ द नाइट्रेट आयंस एंड इट्स बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट आयंस। ये क्या होता है, अब आपके कोर्स से ये निकल चुका है, बट नाइट्रेट आयंस और फॉस्फेट आयंस ये ज़्यादातर वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और what happens is you use them in fertilizer. So when it rains, these are dissolved in water and they end up in rivers and lakes. And ये nitrates और phosphates जो है, they result in the formation of algae. और algae opaque like structure होता है, उससे sunlight नहीं pass होती. So if sunlight cannot penetrate through algae, it will not reach the water plants inside the water. And the plants inside the water, they will not undergo photosynthesis because photosynthesis is needed. And if they don't undergo photosynthesis, they will die because there will be no oxygen. This entire phenomena is called eutrophication, जो आप geography में पढ़े, and the reduction in oxygen is called deoxygenation of rivers. ठीक है जी? तो ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से, अब इनमें किधर है नाइट्रेट या फॉस्फेट? सर सोडियम नाइट्रेट। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सल्फेट, सो दैट्स सोडियम नाइट्रेट। पहले ये कहते थे यूट्रोफिकेशन, पहले पूरा आपके कोर्स में होता था। नो, फर्स्ट यूट्रोफिकेशन वाज इन योर कोर्स, नाउ द टर्म डीऑक्सीजनेशन इज इन योर कोर्स। सो नाउ दे विल नॉट आस्क यू द एंटायर प्रोसेस, दे विल जस्ट से व्हिच आयंस रिजल्ट इन डीऑक्सीजनेशन ऑफ रिवर्स। तो कहानी यही है, लेकिन अब वो प्रोसेस आपसे नहीं पूछेगा। It's in bio, अच्छा bio में पढ़ा, ठीक। In aqueous solution, it gives a white precipitate on addition of acidified aqueous barium chloride। तो वो कह रहे हैं एक aqueous solution में हो वो substance, और अगर आप barium chloride उसमें add करो aqueous, it's gonna give you a white precipitate। अब में से कौन सा है कि barium chloride के साथ white precipitate देगा? कौन सा एक solution है जो barium chloride के साथ प्रेसिपिटेट देगा? सर इट्स सोडियम सल्फेट। क्यों? मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि सोडियम सल्फेट सल्फेट आयन का टेस्ट ये है कि बेरियम आयन के साथ जब ये इन कांटेक्ट आ जाता है, सो इट्स गोना गिव यू अ वाइट प्रेसिपिटेट। नाउ दिस बेरियम आयन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, एनी एक्वस सॉल्यूशन जो सॉल्युबल है। इट कैन बी बेरियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, बिकॉज दे आर ऑल सॉल्युबल। लेकिन हम कोर्स में ये इस्तेमाल करते हैं। अब इसने पता नहीं क्यों क्यों ये बकवास बात की, आप बच्चों को कहते हो कि नाइट्रेट इस्तेमाल करो, फिर बच्चों को भी फ्लेक्सिबल हैंड दो और उनको कहो कि आप कोई भी सॉल्युबल सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं बेरियम का। असल कहानी इस बेरियम 2+ की है, बाकी इट जस्ट नीड्स टू बी सॉल्युबल, दैट्स इट। हाँ जी, नॉट PbCl2, PbCl2 नहीं है। हाँ, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ उस सोल्यूशन को देख रहे हैं जो एक वाइट पीपीटी देगा। सर माय मम सेड टू स्लीप अर्ली बट यू केप्ट अस अप दिस लेट, आई एम सो सॉरी। बस ये लो खत्म हो गए हैं। तो बेरियम क्लोराइड के कौन से? सोडियम सल्फेट, क्योंकि वो सल्फेट आयन विल रिएक्ट विद द बेरियम आयन टू गिव यू अ वाइट प्रेसिपिटेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंटेन्स एन आयन। एन आयन मीन्स अ नेगेटिव आयन विद अ चार्ज ऑफ -1। ये अब देखिए ना, टर्नेलिया मार रहा होता है कैम्ब्रिज एग्जामिनर, व्हाई आर यू सेइंग -1? से 1 माइनस, -1 रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, असल चार्ज 1 माइनस होता है। फिर आप बच्चों के मार्क्स काटते हो, जब बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में 2 माइनस की जगह -2 लिख लेते तो आपको फिर वो अच्छा नहीं लगता। खुदा को खौफ करें यार कैम्ब्रिज। अच्छा, कंटेन्स एन आयन विद चार्ज ऑफ 1 माइनस, तो इनमें से किसके पास 1 माइनस का नेगेटिव आयन है? सर इट इज़ बेसिकली, और देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन पे ऊपर 2 माइनस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसमें क्लोराइड आयन, हाँ, लेड क्लोराइड में क्लोराइड आयन हैज अ चार्ज ऑफ -। प्रोपेनॉल इज अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सोडियम नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट में भी है, सो इट कैन आइदर बी लेड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, आपकी मर्जी है। सोडियम सल्फेट में सल्फेट हैज 2 माइनस, सल्फर डाइऑक्साइड
ऑक्साइड इज अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वाटर इज अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मैं अगर एग्जामिनर हुआ तो शायद उस दफ़ा थ्रेशोल्ड 80 में से 30 हो। तो अच्छा, so which of these you could write lead chloride or you could even write sodium sulfate, सोडियम नाइट्रेट, आपकी मर्जी, दोनों में ना नेगेटिव आयन के ऊपर दोनों लिख सकते हो आप, हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं चलता हूँ वो सवाल, अच्छा थोड़ी बहुत गपशप लगा लेते हैं। सर वन माइनस होता है और माइनस वन असल चार्ज, रिमेंबर द एक्चुअल चार्ज ऑन द आयन इज डिनोटेड बाय वन माइनस, साइन बाद में आता है, सिंबल जो मैग्नीट्यूड है वो पहले आता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर्स में साइन पहले आते हैं और नंबर बाद में आते हैं। सर दिस इज टू मच कैम, आई हैव अ हेडेक नाउ। मैं तो कुछ भी नहीं किया। सर इज इट ट्रू दैट आईजीसीएसई में ज़्यादा आसानी से ग्रेड आता है, जीसीएसई नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आईजीसीएसई इज जस्ट मोर लॉजिकल एंड मोर इजी। इजी इन द सेंस कि वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, मतलब अगर एक टीचर आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हो तो आपको आईजीसीएसई, आप आईजीसीएसई में बहुत आसानी से पूरे नंबर भी ले लोगे। और ओ लेवल्स के लिए आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह भी है, थेरेटिकली ओ लेवल्स में थेरेटिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो कॉन्सेप्चुअली थेरेटिकली दोनों मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को स्ट्रांग होना। सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दे, मैथ्स का मॉक है कुछ दिनों में, उस मैथ्स की टीचर से कहें। तो ट्रिग्नोमेट्री तो मेरा अब काम नहीं है। मैं आपको अर्थमेटिक्स सिखा सकता हूँ, परसेंटेजेस मर्सेंटेजेस सिखा दूँ। सर बट सीए शुड नो मैथ्स, और नहीं, और नहीं, हमारा मैथ्स के साथ काम नहीं होता, अकाउंटिंग के साथ। सर कैन यू टेक द क्लास लाइक इन मॉर्निंग, आई वाज टेकिंग टू क्लासेस एट द सेम टाइम। आतिफ व्हाई वर यू टेकिंग टू क्लासेस द सेम, मेरी क्लास ले लो, बाकी क्लासेस ना लो, केमिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी है, दफ़ा करो बाकी क्लासेस को, बाकियों की रिकॉर्डिंग देख लेना। सर ये सवाल किसी जीसी में भेज देना। प्रीच सर कंफर्म कर दें वी डोंट हैव टू स्टडी टू मच टू गेट अ गुड ग्रेड। नो अभी, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा। आई एम जस्ट सेइंग यू रियलाइज योर कैपेसिटी। अब एक बच्चा हो, वो उसने ना लेक्चर्स देखे हो ना नोट्स बनाए, और वो कहे सर वी डोंट हैव टू स्टडी टू मच टू गेट अ गुड ग्रेड, तो भाई ऐसे नहीं होता। आप, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं माँ की पेट में नहीं था जब मुझ पे केमिस्ट्री नुज़ूल हुई थी, नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि इट्स नॉट अबाउट वर्किंग, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो बकवास होती है ना कि 20 घंटे पढ़ लें और 30 घंटे पढ़ लें और 10 घंटे पढ़ लें, ये फजूल बात है। एवरी पर्सन शुड रियलाइज देयर कैपेसिटी। बड़े बच्चे आपको पता है, डोंट फूल योर, मतलब वो डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, एवरीबडी नोज देयर ओन कैपेसिटी। अब एक बंदे ने सामने किताब रखी होती है, माँ बाप कह रहे होते हैं उनको, मैं कहता हूँ माइलो बच्चे, माँ बाप कहते हो बेटा तो सारा दिन पढ़ रहा था, बेटी तो सारा दिन पढ़ रही थी, पता नहीं फेल कैसी हुई, पता नहीं बी कैसे आया या सी कैसे आया। उनको क्या पता होता, किताब ही बस सामने पढ़ा होते हो, बच्चा ऐसे देख रहा होता है, हाय मैं मर जावा, हाय मैं मर जावा, और दिल में उसके ये चल रहा होता है। तो अब ऐसे तो नहीं चलता ना। इफेक्टिव 20-30 मिनट, 30-30 मिनट पढ़े, घंटा घंटा पढ़े, लेकिन इफेक्टिव याद रखें, आफ्टर एवरी 45 मिनट्स ह्यूमन एफिशिएंसी ड्रॉप्स फ्रॉम 100% डाउन टू 15% और 30%, ऑलमोस्ट बाय 70% आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है एवरी 45 मिनट्स। फिर क्या करना होता है, उठ के चलना होता है, 5 मिनट में रिचार्ज, इन 5 मिनट्स योर इंटायर बॉडी रिचार्जेस। तो 5 मिनट कुछ भी कर सकते। सर योर इंग्लिश इज वेरी गुड, हाउ डू आई इम्प्रूव टुगेदर। आई वॉज द वर्स्ट इन इंग्लिश, आई स्वेयर टू गॉड। आई जस्ट स्पीक, just speak more English, speak more often, ठीक हो जाएगी। सर वी स्टडी अलॉट बट एट द एंड ऑफ द डे मुंह पुख्ताना वायु अल्लाह बखैर की, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बट डोंट जस्ट स्टडी अलॉट, या इट्स नो यूज, यानी इतना ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब स्मार्ट वर्क करें, कसम से स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इजी। अच्छा एक बात, प्लीज़ जिन टीचरों से आपने पढ़ा है, ठीक है, उनके नोट्स बनाए हैं, भाई खुश रहो आबाद रहो, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ बाई रीडिंग बिलियंस ऑफ नोट्स, प्लीज प्लीज। जिस टीचर से भी पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, पढ़ाई के लिहाज तक स्टिक टू वन नोट, स्टिक टू वन टीचर, स्टिक टू वन मेंटर। ठीक है, सेशंस आप प्रैक्टिस मेरे से करें, किसी से भी करें, लेकिन जो नोट्स आपने बनाए हैं वो प्लीज आखिरी दिनों पे ना, यू विल बी बॉम्बार्डेड, ये टीचर के नोट अच्छे हैं, वो टीचर्स के नोट अच्छे हैं, इस टीचर को, भाई आप पागल हो जाओगे, जो आता भी है ना आपको वो भी भूल जाओगे। तो नोट्स को गोली मारे। सर आर यू कंसिडर गेटिंग अ हेयर कट सून, यू लुक गुड विद अ मलेट, और नहीं, और नहीं, अभी तो मैं परसों हेयर कट करके आया हूँ, मेरे तो इतने इतने बाल हो गए थे, काट दिए थे। आई स्टडीड फ्रॉम सर डैश, आई एम नॉट गोना नेम, हाउ इज ही इन योर ओपिनियन, आई डोंट नो हु सर इज, बट सी I can't speak for anybody else. Every teacher has their own audience. Every student synchronizes with teacher. मतलब शायद मेरा स्टाइल किसी को अच्छा लगता हो, शायद किसी को मेरा स्टाइल अच्छा ना लगता हो, क्योंकि शायद कुछ लोग कहते हैं ये अंग्रेज़ी में बोलते हैं ज़्यादा और हमें उर्दू ज़्यादा समझ आती है, हालांकि पेपर तो अंग्रेज़ी में ही देना है।
तो इट डिपेंड्स गाइस, एवरी स्टूडेंट टीचर एज। सर आपकी 15th पास्ट पेपर सेशन में कितना सिलेबस कवर हो जाएगा? 100%। 15th से लेके, अच्छा आई विल बी इन मेरे जो पास्ट पेपर सेशन है ना, तो आई एम नॉट लाइक अदर टीचर्स, बिकॉज मेरे बारे में एक चीज़ है कि आई डू दिस एज अ हॉबी, राइट? आई डोंट नीड इट, यू गाइज नो आई डोंट नीड इट, दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी दे नो आई डोंट नीड दिस, राइट? So what I do is I not only am with you, I'm officially with you from 15th to 15th क्योंकि एक महीने का सेशन होता है, लेकिन अनऑफिशियली आई एम अवेलेबल विद यू टिल जून। तो मैं 15 अप्रैल को जब ऑफिशियली सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके साथ और भी लगा रहूंगा, क्योंकि वो फिर वो लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं होगी ना, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपके साथ लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा, जून तक मैं लगा रहूंगा। मेरा ये जो इंशाल्लाह गर्दन, ये आवाज़ है, जब तक है जान, जब तक है जान, तो आपके साथ ही होंगे जून तक मैं करूंगा। वो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक महीना वो पेड सेशन है। उसके बाद जून तक मैं आपके साथ ऐसे लगा रहूंगा कि आप कहेंगे बस सर बस कर दे, जान छोड़ दे हमारी, फिर आप लोग थक जाएंगे। तो आई डू दिस एज अ हॉबी, बिकॉज माई मेन एम इज नॉट टू टीच यू केमिस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई मेन एम इज टू इंस्पायर you guys, to teach you how to build your character, to make sure that you guys become good human beings in life, to make sure that you guys spread positivity. That's why I want to become famous. इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे क्लास में 100 दो सौ बच्चे बैठे, ताकि जितनी बड़ी ऑडियंस हो उतना बड़ा इम्पैक्ट मैं बना सकूँ। इट इज़ टू थ्रू टीचिंग, बिकॉज आई नो कि ओ लेवल्स के बच्चे ही होते हैं जो बड़े, इस टाइम आपका हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं और आपकी सोचें भी डेवलप होती हैं। तो इट्स नाउ और नेवर, यू नो, आई कैन मोल्ड यू गाइज एट दिस स्टेज। बट इन ए लेवल्स एंड यूनिवर्सिटी लेवल फिर आपका एक रूट बना होता है, फिर वो आपको मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ओ लेवल्स में आई कैन शेप यू, यू नो, आई ट्राई माई बेस्ट। वो बाकी अल्लाह ताला कबूल करे जो भी उनको लगता है, कि अगर कुछ भी हो रहा हो आपको शायद लगे, बट आई वांट टू चेंज, यू नो, ऑल यू गर्ल्स, आई wish there's a lot of pressure from my end on you guys, not in terms of chemistry grades, but in terms of doing something big in life. You guys, I expect you guys to be big entrepreneurs. The guys, I expect you guys to create a positive impact in the society, to help each other, to help people around you, to, you know, improve the lives of others, to spread the word of knowledge as much as possible, to spread positivity as much as possible. तो मेरा मेन एम जो है वो केमिस्ट्री नहीं है भाई, ये गलत गलत फहमी। टीचर्स मेरे साथ compete करते हैं, आई नो सो मेनी टीचर्स जो कहते हैं, आई स्वेयर टू गॉड, आई हैव हर्ड टीचर्स से, ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी ये है, हमसे पढ़ो, इससे क्या, ये वो ये। बट बच्चा क्या, नो डिस्टिंक्शंस आते हैं, बच्चे बच्चे के क्या ट्रैक रिकॉर्ड में स्टार्स और रेज होते नहीं होते ना। वो ये कि आई फोकस मोर ऑन यू गाइस। इट्स, पढ़ाई बाय प्रोडक्ट है, वो आपके स्टार आ जाएगा, आई स्वेयर। और कितना फेमस होना है बहुत यार, कि मैं आपके इम्पैक्ट बना सकूं, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं बनाना चाहता आप लोगों पे। अगर मैं इंडिविजुअली इम्पैक्ट क्रिएट करूँ ना, तो आप फिर वो एक्सपोनेंशियल उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरा एम ऐसे कुछ नहीं होता, मेरा बस यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करूं, आप लोगों को बताऊं यार, यू गाइज आर द जीज, यू गाइज आर द ओजीज, द जीज, यू गाइज कैन डू एनीथिंग यू पुट योर माइंड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा बुरा बच्चा कोई नहीं होता, ये टीचर्स के फजूल बकवास बातें होती हैं, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, ये बच्चा, वो नहीं यार। एवरी स्टूडेंट हैज़ देयर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? मैं कभी नहीं माइंड करता मुझसे कुछ बच्चा डायरेक्ट ऐसे सवाल इस अंदाज में पूछ लेता है, फॉर मे बी एन अदर बुड्ढा बाबा जो सोच रहा होगा वो बदतमीजी इसको समझेगा, मैं नहीं समझता, बिकॉज आई नो यार, आई नो दैट सम स्टूडेंट्स हैव देयर ओन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यू कैंट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी द सेम। यू नो, ये ज्यादती है बच्चों के साथ कि यार, आप जो बच्चा ज्यादा जो है स्टैंड आउट करे उसको प्रेफरेंस दे रहे हो, क्यों भाई? ऑल किड्स आर सेम, यू नीड टू वर्क हार्ड विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, you need to tell them that they can do something big in life. These grades are just gonna be the base, और इसको भी दफा करें, ये आ जाएंगे ग्रेड्स, कसम से आ जाएंगे। जस्ट टेक द लेक्चर्स, टेक द क्लासेस, प्रैक्टिस करें, आ जाएंगे, हर सब्जेक्ट में आ जाएगा। बट what matters the most is how you come out of this situation, how you come out as a human being out of this situation, how you can think of something big in life। देखिए नौकरियां आप लोगों ने, देखिए एक बंदा अगर नौकरी बनाता है 10 लोगों के लिए बना लेगा। तो अगर अब हर बंदा नौकरी की सोच रहा होता है, तो वो एक बंदे के ऊपर आप कंपटीशन देखिए, डिमांड सप्लाई की गेम है। आपके एक बंदे के ऊपर, एक नौकरी के ऊपर 50,000 बंदे आ रहे होंगे,
राइट? इसलिए तो सरकारी नौकरी देके 20,000 की तनख्वाह होती है और 2,000 4,000 लोग खड़े होते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज दैट एम्प्लॉय माइंडसेट, दे हैव दैट कॉर्पोरेट स्लेव इनकलकेटेड इन देयर ब्रेन्स, इनबिल्ट इन देम कि यार नौकरी करनी है, नौकरी करनी यार नहीं, सेठ भी तो किसी ने बनना है ना, नौकरी भी तो किसी ने बनानी है ना। तो यू गाइस नीड टू थिंक बिग इन लाइफ। हाँ, फॉर एक्सपीरियंस नौकरी करनी पड़ती, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ फॉर एक्सपीरियंस। अब मेरे अपने बहुत से वेंचर्स हैं जो चल रहे हैं अभी फिलहाल, वो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हसलर्स यूनिवर्सिटी और नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई क्या करता है और कुछ भी नहीं करता, पढ़ाई गिव्स यू द एडवांटेज ओवर एन इलिटरेट पर्सन, इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ, इन द सेंस दैट यू मस्ट हैव अ ब्रॉडर विजन। अगर पढ़ाई आपको एक ब्रॉडर विजन नहीं दे सकती ना, तो पढ़ाई इज यूजलेस पीस ऑफ शिट, गिरा दे डस्टबिन में और टॉयलेट में फ्लश कर दे पढ़ाई को। पढ़ाई सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी देती है कि इफ़ यू आर शोइंग अप एवरी सिंगल डे टू स्कूल, और इफ़ यू आर शोइंग अप एवरी सिंगल डे टू अ क्लासरूम, आपका एम्प्लॉयर सोचता है कि अच्छा, ये बच्चा हार्वर्ड पढ़ा है तो इसका मतलब है हार्वर्ड ये हर दिन क्लास लेने गया है, हर दिन मेहनत की है, सो आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू बी कंसिस्टेंट विद मी एज वेल। ये एम्प्लॉयर के लिए बनी हुई है। एम्प्लॉयर यूजेस एजुकेशन एज अ बेंचमार्क टू जज द स्लेव्स। जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैं जज कैसे करूँ, हाँ ये अच्छी यूनिवर्सिटी गया, ये हर दिन क्लासेस इसने लिए, ही इज गोना बी कंसिस्टेंट, इसको रख लो। ही डज नॉट केयर अबाउट पता नहीं। तो याद रखिएगा, लिटरेसी और इलिटरेसी में सिर्फ यही फर्क है कि आपको एजुकेशन कंसिस्टेंसी देगा, विजन देगा, और अगर एजुकेशन इज फेलिंग इन डूइंग दैट, देन इट्स ऑफ नो यूज। और इसके लिए यू नीड गुड टीचर्स। आई होप यू ऑल गेट गुड टीचर्स इन लाइफ मूविंग फॉरवर्ड। हैं अच्छे टीचर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सारे टीचर्स फजूल है, वो तो मेरे दिल की भड़ास होती है जो मैं निकालता हूँ। देर आर गुड टीचर्स, राइट? तो ओ नहीं, ओ नहीं, तो देर आर गुड टीचर्स। मैं तो बस चिल, चाहे मैं चिल गाय, मैं टीचर नहीं हूँ। वो एक थे, वो एक पेरेंट थे, वो कहते सर आप मुझे कॉल की, सर आप मस्खरा हैं या आप टीचर हैं, आप क्या कर रहे हैं, बच्चों चिलिंग्स कर रहे हैं। और फिर उस स्टूडेंट की मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, फिर उस अमी ने अपॉलजी के लिए कॉल की थी, 2022 की बात है। तो सर डिस्टिंक्शंस की सीक्रेट बता दे, दफा करें, वे डिस्टिंक्शन कुछ भी नहीं है, बकवास चीज है, दफा करें। माई आपको पता है, आई डोंट इवन टॉक, वैसे तो आई टॉक अ लॉट अबाउट द 9 distinctions बिकॉज आई वांट अनदर वन, बट आई टेल यू समथिंग, आई एम मोर प्राउड, आई एम मोर प्राउड, एंड आई टेक pride in when my students who are who are U graders or D graders, they go into A and A star. That's why I love them. That's why I love them. मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं ना जो मेरे से, उन्होंने डीज आए थे, यूज आए थे, और वो जो खुशी है ना, वो डिस्टिंक्शन से बड़ी होती है। वो जो खुशी होती है, वो प्यार का इजहार, और जो जो उस टाइम रोना धोना होता है, आपको क्या पता मैं कौन कौन सी इमोशंस देखे हैं यार। एक स्टूडेंट से को मैंने पढ़ाया था रिसेंटली, वो मैं बताता हूँ, आई चार्ज 500,000 फॉर 1 मंथ की, बिकॉज आई हैड नो टाइम, और वो 1-on-1 ट्यूशन चाह रहे थे, तो आई चार्ज 500,000 एक महीने का। बट दैट स्टूडेंट वेंट फ्रॉम D to an A। वो जो खुशी थी ना, तो वो बस लेक्चर्स लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है, यू विल गो फ्रॉम DE to an A और A स्टार। तो बस यही है, आसान है। देखें, चीज़ों को सिंपल बनाया करें, ज़िंदगी को आसान बनाया करें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम है, यू स्टिल हैव 55-60 days, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बस सुबह के वक्त आराम से नींद शीन पूरी करें, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप, आराम से पढ़ाई वढ़ाई होती जाएगी, हो जाएगी, ठीक है? तो एवरीथिंग विल बी वेल, यू ऑल विल एस योर एग्जाम्स, जस्ट मेक श्योर कि अपने नोट शोट्स पिन पॉइंट पे रखें अपने। और आसान है, कुछ भी नहीं है, आई स्वेयर, बहुत हलवा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो, 11 से 12 सेशन था, 1 बज गया है, तो मेरे ख्याल से बस अब बस कर देना चाहिए। चलो गाइस, कीप मी इन योर प्रेयर्स, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, चाओ चाओ, अल्लाह हाफिज़।